टेक्निकल इश्यू। तो पीपीटी है वो मैं बाद में मैम को शेयर कर दूंगा। मैम विल शेयर विद यू मैम। इज इट ओके मैम? Okay sir, no problem. ठीक है, थैंक यू very much. Good morning everyone. Good morning students. हाँ जी, कोई बात नहीं सर, हम शेयर कर देंगे. Good morning everyone. I am Dr. Renu from Baba Masnas University. Teachers can change lives with just the right mix of chalk and challenges. With that, I would like to call Dr. Ajit Kumar on the platform. Dr. Ajit Kumar is working as the assistant professor in the Department of Teachers Training and Non-Formal Education, IASE, Faculty of Education, Jamia Millia Ismaila, New Delhi, Science, last 14 years. He is also assistant protector and member of Academic Council of University. He has done graduation and post-graduation in history. In the field of education, he has degree of B.Ed, M.Ed and M.Phil education from CIE, University of Delhi, UGC NET and PhD in education from IASE, that is Jamia Millia Ismaila, New Delhi. His specialization areas are pedagogy of history, history of education, social science, education, teacher education and policy perspective in education. He has also contributed in curriculum development in CODL and SOL, University of Delhi. He has delivered more than 40 lectures and talks in different conferences, seminars, national and international workshop as a resource person. He has published more than 20 papers in national and international UG Care listed journals. Let's all welcome him with a huge round of applause. Now I will hand over the stage to Dr. Ajit Kumar. थैंक यू डॉक्टर रेनू मैम, आपका शुक्रिया। और आपने मौका दिया आप सबने, और खासकर बाबा माता यूनिवर्सिटी का, जो हर साल इस तरह के वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो बेहतर हो सके। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कांसेप्ट हिस्टोरिकल रिसर्च एंड फिलोसॉफिकल रिसर्च। और खासकर हम ऐतिहासिक जो अनुसंधान की बात करते हैं, जो फिलोसॉफिकल रिसर्च की बात करते हैं। फर्स्ट we will discuss about the concept historical research. And the one thing is clear, when we're talking about the historical research, first we know about the actual meaning of history, because we don't know about the actual concept of history. इतिहास का जब अर्थ है रिसर्चर में पता नहीं होगा कि एक्चुअल में इतिहास कहते किसे है, और जो इतिहास की समझ हमारी है वो क्या है। As a researcher or a teacher of history, first we know about the concept of actually quote unquote the terms of history, because every historians and the persons interpret history their own way. और यही वजह है कि इतिहास को लेकर हमेशा हिस्टोरियंस के बीच में और डिफरेंट एजुकेशनिस्ट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट या डिबेट का डिस्कशन करें वो कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस। So first, before we're going to start about the historical research, we discuss about the basic concept of historical philosophy. और जब तक इतिहास का दर्शन हम नहीं समझेंगे तब तक हम हिस्टोरिकल रिसर्च की जो एक्चुअल जो कंसेप्ट्स है वो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। So that's why we are going to start about the history. इतिहास को लेकर हमारी समझ क्या है? सिंपल से शब्दों में कहे, स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, बट history is not only the study of past event, because it's related about to our whole life. चाहे हमारे सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो, पॉलिटिकल हो, हिस्टोरिकल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिकल हो, ह्यूमंस के हर एस्पेक्ट से इतिहास का जो विषय है वो जुड़ा हुआ है। इसलिए हर हिस्टोरियंस ने टाइम और सिचुएशन के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से इतिहास को इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। इसलिए कहा जाता है every historians have their own the way of thinking history and their own definition of history. For example, historians का Henry Perrin वो कहते हैं history is the story of deeds and achievements of men living in the societies.
कि जब एक ये समाज में मनुष्य रहता है, उसकी इच्छाएं और उसकी उपलब्धियों की जो स्टोरी है उसे हम इतिहास देखते हैं। लेकिन क्या एक्चुअल में इतिहास सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस की इच्छाओं और उसके अचीवमेंट्स की उपलब्धि है? Clear? No. That's why the philosopher Sheikh Ali, who says history is the philosophy teaching by examples. इतिहास वो विषय है जो हमें उदाहरणों के द्वारा समझाता है, बताता है कि what we are and how to develop in human societies, और जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग की हुई है वो किस तरीके से हुई है, ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है जो हमें एग्जांपल्स देता है, that's called quote unquote history. Then could some historians criticize this definition about the history? Those are given by the Sheikh Ali. And the one is to the famous historians Collingwood. He said that all history is history of thoughts. कि सारा का सारा जो इतिहास है वो सिर्फ विचारों का इतिहास है। और जब हम ये कहते हैं कि विचारों का इतिहास है, is directly linked to the historical facts and the historical interpretation which is given by the different historians and different time frame. वही कहते हैं कि ह्यूमंस तो क्या आज है कल नहीं है, और जब ह्यूमंस इस तरीके से आज है कल नहीं है तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस की जो डेवलपमेंट है वो तब तक आगे फॉलो नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि उसे कंसेप्चुअलाइज ना किया जाए या उसे आइडियाज में एक कॉन्क्रीट फॉर्म में ना लिखा जाए। इसलिए कॉलिंगवुड ने कहा था कि ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ थॉट्स, और हर हिस्टोरियन जो है अपने तरीके से हिस्टोरिकल फैक्ट्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। डिबेट इज गोइंग इन 18th and 17th century। जो इसकी डिबेट है बेसिकली जो इतिहास की डेफिनेशन को लेकर, is starting on the 17th, 18th, 19th century in the era of industrialization as well as the scientific revolution. साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद खासकर 18th और 19th सेंचुरी का जो इरा है, उस इरा में हर चीज जब साइंटिफिकली साइंटिफिक मेथड्स के डेवलप होने के बाद देखने की कोशिश की गई तो इतिहास के मीनिंग को लेकर भी हिस्टोरियंस के बीच में ये डिबेट उठी। एक हिस्टोरियंस हुए प्रोफेसर ब्यूरी, वहीं से कोई डिबेट उठती है द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री को लेकर। उन्होंने कहा हिस्ट्री इज साइंस नो लेस नो मोर, बिकॉज इतिहास में भी हम उसी तरीके के साइंटिफिक अप्रोच मेथड्स का यूज करते हैं जिस तरीके से हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। देन कोई स्टूडेंट्स हुए थे G.R. एल्टन, वो कहते हैं हिस्ट्री इज व्हाट, हिस्ट्री इज व्हाट हिस्टोरियंस राइट। इतिहास वो है जिन्हें कोई इतिहासकार लिख देता है, क्योंकि जब तक हिस्टोरियंस किसी भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स या फैक्ट्स को इंटरप्रेट नहीं करेगा और वो इंटरप्रिटेशन के बाद वो रिटन फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक वी डोंट नो अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स एज वेल एज द इंटरप्रिटेशंस। और इसीलिए इतिहास में जैसा मैंने पहले कहा था कि एक लगातार जो डिबेट छिड़ती है अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट्स। और हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में हर फैक्ट्स के लेकर जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है वो निकल कर आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री इज व्हाट हिस्टोरियंस राइट। और खासकर जब हम रिसर्च टीम में हम लोग बात करते हैं तो जो कंसेप्ट आता है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस का, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म की जो हम बात करें, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो यहीं पर आता है कि हाउ टू राइट हिस्ट्री। और जब तक एज ए हिस्ट्री रिसर्चर और स्टूडेंट्स वी डोंट नो अबाउट द फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री है या इतिहास की जो अपनी समझ है वो हमें बनानी होगी, ताकि हिस्टोरिकल रिसर्च करते वक्त हमें किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी है वो हम लोग फेस ना करें। इसीलिए कहा हिस्ट्री इज व्हाट हिस्टोरियंस राइट। इसीलिए कहा जाता है इफ यू वांट टू स्टडी हिस्टोरियंस बुक फर्स्ट रीड अबाउट द हिस्टोरियंस। यदि आप किसी इतिहासकार की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, पहले उस इतिहासकार के बारे में स्टडी कीजिए जिसने उस पुस्तक को लिखा है। बिकॉज इफ यू रीड अबाउट एन हिस्टोरियंस देन यू नो हिज और हर आइडियोलॉजी, हिज और परसेप्शन एंड हिज और हर मेंटल प्रोसेस, और जो मेंटल जो एक प्रकार का जो असम्पशंस है उसके बारे में आप आइडिया लगा सकते हो। तो आपको पता लगेगा
कि जिन फैक्ट्स का उन स्टोरीज ने यूज किया है दे आर ऑथेंटिक और नॉट, और यही ऑथेंटिसिटी ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है हिस्टोरिकल रिसर्च में हेल्प करती है। इसीलिए एक स्टोरी फेमस EH का जो आपने उनकी बुक है फेमस व्हाट इज हिस्ट्री, उसमें वो कहते हैं कि हिस्ट्री इज व्हाट, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हिस्टोरियंस एंड हिज फैक्ट्स एंड अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। कि इतिहास जो है वो एक लगातार चलने वाला अंतहीन संवाद है, हिस्टोरियंस एक इंटरेक्शन है इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच में, और ये लगातार चलने वाला अंतहीन संवाद है भूतकाल और वर्तमान के बीच में। इतिहासकार ने क्लियर किया, इफ यू नो अबाउट द हिस्ट्री और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन और हिस्टोरिकल फिलोसफी, you know about the interaction between historians, historical facts and interpretation। यदि आप इन तीन concepts को क्लियर समझ जाओगे तो what is history, what are the historians, what is historical facts and what are the interpretation, तो कहीं ना कहीं आपको जो इतिहास की जो समझ है, या हम ये कहें कि जो इतिहास का बेसिक जो कंसेप्ट्स है, जिसे लोग कहते हैं कि निचोड़ जो है इतिहास का, वो हमारे लिए समझना और समझाना इजी होगा। और जब हमें इतिहास की बेसिक फिलोसफी समझ में आ जाएगी तो जो हिस्टोरिकल जो इंटरप्रिटेशंस है और जो हिस्टोरिकल रिसर्च के जो मेथड्स है या हाउ टू इंटरप्रेट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स और डाटा की जो एक समझ है एक रिसर्चर को होनी चाहिए, वो हमारे लिए समझना इजी होगा। तो इचकार खुद कहते हैं कि इफ यू वांट टू नो अबाउट द क्रक्स ऑफ हिस्ट्री, you should know about the interaction between the historians, historical facts and interpretation। क्योंकि इन्हीं तीन चार शब्दों के बीच में पूरे का पूरे इतिहास का जो निचोड़ है वो हमें दिखाई देता है, और यही हिस्टोरिकल रिसर्च और हिस्टोरिकल फिलोसफी का एक बेस बनाता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज हिस्टोरिकल फैक्ट्स? हम हर बार यूज करते हैं कि इतिहास तथ्य किसे कहेंगे, सीधी बात है जो हमें दिखाई देता है जो मिलता है, बट हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी समझना हमारे जरूरी है। फॉर एग्जांपल, व्हाट देयर आर टू टाइप ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, फर्स्ट इज फ्लेक्सिबल, दैट इज फिक्स्ड। हालांकि जो तीन टाइप के जो सोर्सेज की हम लोग बात करेंगे वो उसमें आगे बात करेंगे। पहला है फिक्स्ड। इतिहास में कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें वी कांट चेंज, फॉर एग्जांपल डेट्स। उसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेस पर या कार्बन डेटिंग के बेस पर जो हमें फैक्ट्स मिलते हैं, ये फैक्ट्स दिखाई देते हैं जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, दैट इज फिक्स्ड फैक्ट। सेकंड है फ्लेक्सिबल, जहां फ्लेक्सिबिलिटी की बात आएगी, दैट कैन बी और नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय द हिस्टोरियंस। और सारा के सारा जो डिबेट है इतिहास में वो इन्हीं फ्लेक्सिबल फैक्ट्स के अराउंड घूमती है, और इसीलिए जो इंटरप्रिटेशंस को लेकर हमेशा एक डिबेट्स आती है स्टोरीज के बीच में, वो आती है हिज और हर परसेप्शन अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। और यही जो फ्लेक्सिबल फैक्ट्स है इतिहास में एक नई तरह के जो डिबेट डिस्कशंस है उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फ्लेक्सिबल फैक्ट्स का मतलब होता है दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द हिस्टोरियंस, जो कि उसकी जो परसेप्शन है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, there are lots of school of thoughts in history, Marxist ideology, American school of thoughts, German school of thoughts, British school of historians, there are lots of group in history। और इंडिया में भी हम दो तरह के जो school of thoughts देखते हैं, rightist और leftist ideology, because हर school of thoughts का जो interpretation of the facts का जो perspective है और जो उसका एक vision है वो depend करता है उनके अपने school of thoughts के मुकाबले। और यही वजह है कि there are lots of interpretation हमें दिखाई देती है किसी भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। वो उसको हम कैसे चेक करें और कैसे हिस्टोरिकल रिसर्च में इन चीजों को हम देखें, लेट मी डिस्कस द फर्दर। तो उसी तरीके से एक सवाल उठता है हिस्टोरियंस, क्योंकि हिस्टोरियंस कौन है और हम कैसे इतिहासकार माने। सबसे बड़ा सवाल है, क्या मैंने लिख दिया वो इतिहास का कंसेप्ट आएगा, या किसी भी ह्यूमन बीइंग ने लिखा उसे पार्ट ऑफ हिस्ट्री आएगा? नो। यही वजह है
कि जब हम ऑथेंटिक हिस्टोरियंस की बुक को रेफर नहीं करते अपने रिसर्च में, तो कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वही होती है, स्पेशली इन हिस्टोरिकल रिसर्च। हु आर द हिस्टोरियंस? हम किसे हिस्टोरियंस माने, किसे हिस्टोरियंस कहेंगे? ये बड़ा सवाल है। तो यचकार और जो हिस्टोरियंस है तो वो ये क्लियर करते हैं कि those who have the depth knowledge of historical facts, how to what is the meaning of facts, interpret कैसे करते हैं historical facts को, and what is the truth historians। जब ऑथेंटिसिटी की बात आती है हिस्ट्री में, वो डिपेंड करता है कि उस हिस्टोरियंस ने कितने सोर्सेज का यूज किया है, दैट इज प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, जो हम लोग हिस्टोरियंस में बात करेंगे। यदि किसी हिस्टोरियंस के जो यूज किए हुए जो रेफरेंस सोर्सेज है वो ऑथेंटिक है। अब सवाल ऑथेंटिसिटी का हम लोग बाद में बात करें, इसमें बात करें कि इंटरप्रिटेशन क्या है, एक्सप्लिसिटिज्म क्या है। जब जो हिस्टोरियंस ऑथेंटिक सोर्सेज का यूज करता है और उसकी बात को जो अलग अलग प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स हिस्ट्री है वो उनके बेस पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लिखता है, तो वो ऑथेंटिक हिस्टोरियंस कहलाता है कि जिसके सोर्सेज और फैक्ट्स ऑथेंटिक हो। इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने पहले कहा कि देयर आर टू टाइप ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। इंटरप्रिटेशन जो है वो डायरेक्ट लिंक करती है हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ। ये इसका एक बड़ा खूबसूरत एग्जांपल देते हैं कि व्हाट इज हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जैसे लाइक अ फिश। जैसे आप मछली कहीं किसी बाजार में जाते हो, तो बाजार में जाने के बाद आप 10 तरह के, फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए और उस मार्केट में जाने के बाद आपने कोई कपड़ा आपको खरीदना है, आप 10 तरह के कपड़े देखते हैं, जो आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स होती है वो जो आपको अच्छा लगता है आप उसको कपड़े को लेते अपने घर ले आते हैं। ईच का कहते हैं सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो है वो इसी तरीके से हिस्टोरियंस करते हैं अपनी परसेप्शन, अपनी आइडियोलॉजी और अपने विजन के हिसाब से कि व्हाट ही और शी वांट। और जहां व्हाट ही और शी वांट कंसेप्ट आएगा वहीं पर जो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस है वो डिफरेंट तरीके से हमें देखने को मिलेगी। वो एक एग्जांपल देते हैं फिश का, कि आप समुद्र किनारे हो, फिश मार्केट है, आप गए, जो आपको अच्छा लगा आप लेके आए। जब पिक एंड चूज का हम लोग हिस्ट्री में यूज करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो पिक एंड चूज का जो जो कंसेप्ट है खासकर हिस्टोरिकल रिसर्च में, वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री की जो ऑथेंटिसिटी है वो उसको लेकर आगे प्रॉब्लम क्रिएट करने में एक मेजर रोल प्ले करता है। और यहीं पर उसी फैक्ट्स के बेस पर जो हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की जाती है वो उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आगे बढ़ाती है, जिसकी वजह से हिस्टोरिकल कंफ्यूजन क्रिएट होती है अमंग द रिसर्चर एज वेल एज द टीचर। Interpretations should be based on the authentic facts, कि हम उसे ही हिस्टोरिकल फैक्ट्स का पार्ट मानेंगे जो ऑथेंटिक हो, जिसके बारे में हमारे जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, प्राइमरी, सेकेंडरी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, तीनों उसके बारे में सेम बात करें। और जो इंटरप्रिटेशन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उस फैक्ट्स जो दी गई है वो भी सेम बात कही, तो हम कहते हैं कि दैट इज हिस्टोरिकल फैक्ट्स बेस्ड ऑन द रियल इंटरप्रिटेशन। मेन द कंसेप्ट सोर्सेज, खासकर रिसर्च में जब हम लोग यूज करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते वक्त हमेशा सोर्सेज के ऊपर ही कई बार सवाल उठते हैं कि व्हाट इज योर सोर्सेज। बेसिकली 3 तरह के सोर्सेज यूज करते हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। प्राइमरी सोर्स का मतलब है कि जिसका डायरेक्ट लिंक होता है उस हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ, उसे कहते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन या हिस्टोरिकल फैक्ट्स। दूसरा है सेकेंडरी, जिसका डायरेक्ट लिंक ना होकर उस हिस्टोरिकल इवेंट के साथ फैक्ट्स जो किसी और के द्वारा किया जाता है वो आपको कहलाता है सेकेंडरी सोर्सेज। थर्ड होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हालांकि एक और इंटरप्रिटेशन देते हैं एंट्री सोर्स के तौर पर, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद जो मेजर जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है कि वो रिमेन्स एक्सकवेशन के द्वारा हम लोग को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल
कोई ऑर्नामेंट्स, कोई पोएट्री, कोई पोट्री, देन कॉइन्स इत्यादि, जो कि ऑथेंटिक और प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं, फ्लेक्सिबल जो फिक्स सोर्स कहलाते हैं हिस्ट्री के। इन सब चीजों के बाद ही जो हिस्टोरिकल जो कंसेप्ट है वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, जो कि हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए हर एज ए रिसर्चर या जो स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री है उसको जानना जरूरी है। फिर सवाल ये उठता है कि व्हाट इज हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, कि हमने इतिहास का मीनिंग जान लिया, वी नो अबाउट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशंस, बट जब हमें वर्ड यूज करते हैं हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इट मीन बाय द हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, हम बेसिकली 5C का यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल थिंकिंग। फर्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ चेंज ओवर द टाइम, कि समय के साथ किसी भी स्थिति परिस्थिति या उस फैक्ट्स में किस तरह का बदलाव आया। सेकंड, कॉजेलिटी, कॉज एंड इफेक्ट, कि कोई घटना घटी है, उसके कुछ ना कुछ बेसिक रीजंस रहे होंगे और उस घटना के घटने का कोई ना कोई इफेक्ट रहा होगा। समझते कॉज एंड इफेक्ट, कोई कारण है, उसका घटना है हुई, तब उसके इफेक्ट हुए। सेकंड है कॉन्टेक्स्ट, इतिहास में हमेशा जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनका स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉकिंग अबाउट द मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स और द मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है उसका भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है, और वो कॉन्टेक्स्ट उसी स्पेसिफिक संदर्भ में ही हम कॉन्टेक्स्ट में यूज करें तो बेटर। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉकिंग अबाउट द पंच मार्क, जब लोग 5 मार्क कॉइंस कहते हैं, उनका स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, और उन्हीं टाइम फ्रेम के बेस पर या उसके उस पंच भाग के बेस पर हम उसी टाइम फ्रेम के बारे में जान सकते हैं, ना उससे पहले के बारे में ना उससे बाद के बारे में। उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इतिहास में सोर्सेस का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है, और रिसर्च में जब हम लोग चीजों को यूज करते हैं, खासकर हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर, तो हमेशा स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही बात की जाती है जिस कॉन्टेक्स्ट से वो सोर्स हमारा रिलेटेड है। देन उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। कोई भी जो फैक्ट्स है वो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बारे में एक होल पिक्चर हमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। एज ए रिसर्चर और स्टूडेंट हमें उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉकिंग अबाउट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कि अगर हम लोग बात करें, रिसर्च कर रहे हैं खासकर जो अननोन हिस्टोरियंस को लेकर और या अननोन जो फ्रीडम फाइटर्स को लेकर, तो हमें उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा जिस कॉम्प्लेक्सिटी में हम उन अननोन हिस्टोरिकल फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। जब तक हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझेंगे, उसके सराउंडिंग सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस थे, उन चेंजेस ने सोसाइटी को किस तरीके से इफेक्ट किया, जब तक हम एक होल पिक्चर में उस पूरे के पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक हम उस कॉम्प्लेक्सिटी को ना तो समझ पाएंगे, ना ही अपने स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से हम लोग समझा पाएंगे। देन उसके बाद आपका आता है, उसके बाद एक और उसमें आता है कंटीजेंसी, कि टाइम के साथ जब लोग हिस्ट्री में टाइमलाइन भी बोलते हैं, वो किस तरीके से चेंज हुई। हर हिस्टोरिकल फैक्ट्स बेस होता है अपने प्रीवियस घटना के साथ, और उसके बाद की जो इवेंट्स है वो बेस होते हैं अपने प्रीवियस इवेंट के साथ, और ये कंटिन्यू चलती रहती है हिस्टोरिकल फैक्ट्स में। फॉर एग्जांपल, यदि हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में से हम जो ब्रिटिश इरा को निकाल देंगे या जो द मुगल्स को निकाल देंगे, तो शायद इतिहास की जो एक कंटिन्यूटी वो नहीं बन पाएगी। और हिस्टोरिकल रिसर्चर में और स्टूडेंट्स में हमें उस कंटिन्यूटी को भी समझना होगा, क्योंकि जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो उस बैकग्राउंड का भी एक प्रॉपर लिंक होता है, और बिना किसी हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बैकग्राउंड के हम हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स की जो इंटरप्रिटेशंस है
वो नहीं समझेंगे। और जब तक हम फैक्ट, स्टोरीज, इंटरप्रिटेशन, सोर्सेस के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमारी जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं होगी। उसके साथ साथ कुछ और बेसिक जो चीजें हैं, पहला सोर्सेस, एविडेंसेस, सिग्निफिकेंस और प्रोस्पेक्टिव। सोर्सेस कि which type of what type of sources you used in your research, then evidences कि उस सोर्सेज का प्रॉपर एविडेंस क्या है। हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए ये बेसिक कंसेप्ट है। सिग्निफिकेंस कि हर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की अपनी एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होती है, और इतिहास में हमेशा उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज किया जाता है जिसकी सिग्निफिकेंस हो। फॉर एग्जांपल, if you're talking if you're doing the research on history text books, जो बच्चे काफी करते हैं टेक्स्ट को लेकर, परसेप्शन ऑफ द हिस्टोरिकल टीचर एंड स्टूडेंट्स, तो देखना होगा हमें कि उस रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, उसकी यूटिलिटी है या नहीं है। देन प्रोस्पेक्टिव कि आखिर जो सोर्स है उसको पीछे लिखने का जो प्रोस्पेक्टिव ऑफ स्टोरीज है वो क्या है। और जब तक हम जो प्रोस्पेक्टिव को नहीं समझेंगे तब तक हम चीजों के बारे में बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, स्टोरीज, इंटरप्रिटेशन, सोर्सेस के बाद बनी हमारी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं तो हम जो जुड़ जाते हैं हिस्टोरिकल स्किल्स के साथ। अब हिस्टोरिकल स्किल्स हम कहते किसे हैं? हिस्टोरिकल स्किल्स जो है ये वो कंसेप्ट है जिसमें कहते हैं हाउ टू लर्न अबाउट द पास्ट इन अ साइंटिफिक वे। आइडियोलॉजीज क्या थी, क्या सोसाइटीज थी, गवर्नमेंट सिस्टम क्या था, कल्चर क्या था, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते थे, कैसे वो बनाई गई, एंड हाउ दे ऑपरेटेड एंड हाउ दे हैव चेंज्ड। अगर हमें इन चीजों के बारे में समझना है तो हमें कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल स्किल्स के बारे में बातें करनी होगी। कुछ बेसिक स्किल्स है जिसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है कि हम कैसे उन हिस्टोरिकल चीजों के बारे में देखते हैं, समझते हैं, सोर्सेस को कैसे यूज करते हैं। और इंडियन जो अगर पर्सपेक्टिव में बात करें तो हिस्टोरिकल स्किल्स का हमें समझ होनी चाहिए। और हिस्टोरिकल स्किल्स तब होगी हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए जब हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इंटरप्रिटेशंस, हिस्ट्री, हिस्टोरियंस और हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री, इनके बारे में अपनी बेहतर समझ बना पाएंगे। तभी हमारी जो हिस्टोरिकल जो समझ है वो हमारी बेहतर बन पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि हिस्टोरिकल स्किल्स के लिए जरूरी है इनकी समझ के साथ साथ क्रोनोलॉजी, कि जो टाइमलाइन में क्रोनोलॉजी हुई है चेंज उसको समझिए आप। comprehension, the terms and the concept, analysis and how to use historical facts and sources, interpretations or explanation and the communication of the historical facts। इन सब चीजों के बाद बेसिक जो चीज हम निकल जाती है वो आती है हिस्टोरिकल रिसर्च का जो कंसेप्ट, वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हम लोग बात करें कि हिस्टोरिकल रिसर्च हम कहते हैं किसे, देखिए सिंपल सी बात है, हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हम उन्हीं तरह के मेथड्स का या उन्हीं तरह के जो स्टेप्स का यूज करते हैं जो एक सिंपल रिसर्च में यूज करते हैं। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये डिबेट का इशू है, हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द डाटा, उसके बाद इंटरप्रिटेशन एनालिसिस ऑफ द डाटा, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतिहास में हम जब ये कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब होता है कि जब हम किसी भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट को लेकर एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च की बात करते हैं। जैसे आप लोग डिस्कस स्टडी भी क्या हुआ, व्हाट इज रिसर्च? सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिगरस प्रोसेस ऑफ एनी प्रॉब्लम और फैक्ट्स। जब हम किसी भी एक
तथ्य को लेकर, हिस्टोरिकल घटना को लेकर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से रिसर्च करते हैं, वो आपका हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च की तो बात करते हैं, लेकिन हिस्ट्री में हम किस तरीके से प्रॉब्लम्स का सिलेक्शन करें, क्योंकि जब तक हम हिस्ट्री में सही कंसेप्ट का या फिर जो सही एरिया का सिलेक्शन नहीं करेंगे, तब तक हमारे हिस्टोरिकल चाहे कितनी भी हमारी समझ हो, हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम कैसे हिस्टोरिकल चीजों की तरफ देखें। सबसे पहले इसमें बात आती है कि व्हाट यू वांट टू डू, कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। और हिस्टोरिकल प्रॉब्लम को करने के लिए हम किसी भी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेशन, आइडियाज, जो इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स है, थियोरीज है, और हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एरियाज को एक कंसेप्ट हम लोग ले सकते हैं, जिसका इफेक्ट जो है वो हमारी सोशोलॉजिकल, कल्चरस, इकोनॉमिकल, जेंडर, रीजन, रिलीजन, एज के ऊपर हुआ हो। एक स्पेसिफिक एरिया में उस घटना ने इफेक्ट अपना डाला हो, या फिर जो कल्चर जो एस्पेक्ट्स है उनका क्या इफेक्ट है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एजुकेशन। तो हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट बुक्स है, ये जो करिकुलम है, उसको फ्रेम करने में सकते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स हमें पहले करनी होती है। और ध्यान रखिएगा, जब तक हिस्टोरिकल रिसर्च में हम राइट एरिया का सिलेक्शन नहीं करेंगे, तब तक हम जिस लोग कहते हैं ना कि सिलेक्शन ऑफ द एरिया, वो लोग नहीं कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए हिस्टोरिकल रिसर्च में चीजों को सिलेक्ट करते वक्त कि हमें उन्हीं चीजों को लेना है जिसके कि हमें उसके लिए प्रॉपर एविडेंस मिल सके। अजम्पशंस के बेस पर या फिर यू कहें हम सिंपल आइडियाज के बेस पर हम हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में जब हम डाटा को एनालाइज करेंगे, इंटरनेशनल वैलिडिटी की हम लोग बात करेंगे, तो हमें ऑथेंटिक प्रूफ हमें चाहिए होता है। और अगर हमारे पास उसका ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, जहां सिंपल शब्दों में कहे सॉलिड एविडेंसेस नहीं है हमारे पास, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द हिस्टोरिकल रिसर्च। उसके साथ साथ प्रीवियस में किस तरह का जो सिस्टम था, आज में किस तरह का है, या फिर किसी भी सोसाइटी का सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस जो एस्पेक्ट्स है, वो पहले किस तरह था और आज किस तरीके का है, उन दोनों में क्या बदलाव है। इस तरह के जो कंसेप्ट हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी प्रॉब्लम का सिलेक्शन करते वक्त, खासकर हिस्टोरिकल एरिया का, हमें ये क्लियर करना चाहिए कि उस हिस्टोरिकल फैक्ट्स और प्रेजेंट में उनकी क्या रेलेवेंस है, इंपोर्टेंस है, उन दोनों के बीच में प्रॉपरली होना चाहिए। और कहा भी जाता है इतिहास वह है जो हमारी करंट सोसाइटी की नीड्स होती है, और जैसा सोसाइटी की नीड्स होती है उसी तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है हमारे सामने निकल कर आते हैं। क्योंकि हिस्ट्री डील्स विद द ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स जहां आ जाते हैं, वहां पर जो प्रेजेंट रिलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। वरना सीधी सी बात है, इतिहास के किसी भी तथ्य को हम लोग रिसर्च का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन यदि वर्तमान में उसकी कोई रिक्वायरमेंट और नीड्स नहीं है, तो वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है उसको हम लोग रिसर्च एरिया का पार्ट नहीं बनाते, क्योंकि हम लोग लिखते हैं नीड ऑफ द स्टडी। ये सिनॉप्सिस कैसे प्रिपेयर करें ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और जब तक नीड ऑफ स्टडी का कंसेप्ट नहीं होगा इतिहास में खासकर, तब तक उस हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करने का कोई भी जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ जब सिलेक्शन करें प्रॉब्लम का, तो हमें ये भी देखना होगा
कि उसके लिए प्रॉपर हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो है वो अवेलेबल हो। मैंने पहले कहा था कि बिना एविडेंस के की गई बात को हम सिंपल लिटरेचर मानते हैं, और जब हम एविडेंसेस के बेस पर कहते हैं तो हम उसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स का पार्ट मानते हैं। यही डिफरेंस कहलाता है लिटरेचर और हिस्ट्री के बीच में। उसके साथ साथ हमें देना फॉर्मेशन हाइपोथेसिस, ये बड़ा सवाल है। किसी और रिसर्च में तो आप हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हो, तो आपको टेस्ट करनी होती है, लेकिन हिस्ट्री में आप हाइपोथेसिस कर भी सकते हो, नहीं कर सकते, इट्स डिपेंड ऑन योर एरिया ऑफ द रिसर्च। क्योंकि हाइपोथेसिस का मतलब बेसिकली होता है वो अजम्पशंस जिन्हें हम लोग टेस्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि तीन तरह की हाइपोथेसिस होती है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल और नल हाइपोथेसिस। इतिहास में इस तरह की हाइपोथेसिस को क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए इतिहास क्योंकि डील करता है विद द पास्ट, और हम पास्ट की किसी भी घटना को ना तो विजुअलाइज कर सकते हैं उस तरीके से रियल सिनेरियो में, ना ही हम उसे जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट में हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं, हम इतिहास में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि घटना तो घट चुकी है, बस हमें उसे आज के संदर्भ में चीजों को देखना है। तो इसीलिए इतिहास में बनाए जाते हैं रिसर्च क्वेश्चंस, और रिसर्च क्वेश्चंस को जो पास्ट इंसिडेंट्स है, जिसे हम लोग हिस्टोरिकल घटनाएं कहते हैं, उसके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही हमें अपने रिसर्च क्वेश्चंस को फ्रेम करना होगा। रिसर्च क्वेश्चंस को फ्रेम हम अपने टाइटल से लिंक कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि उसके लिए हमारे पास प्रॉपर जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस है वो अवेलेबल हो, और वो तब होगा जब आपका रिसर्चर खुद हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो होगी। देन नेक्स्ट स्टेप इज कलेक्शन ऑफ द डाटा। हम सभी जानते हैं कि प्रॉब्लम का सिलेक्शन करने के बाद, हाइपोथेसिस को फ्रेम करने के बाद, सबसे बड़ा जो बिग क्वेश्चन आता है कलेक्शन ऑफ डाटा। और इतिहास में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हिस्टोरिकल रिसर्च में आती है कलेक्शन ऑफ द डाटा में, कि हाउ टू कलेक्ट हिस्टोरिकल डाटा। और ये कहते भी है कि हिस्टोरिकल रिसर्च में डाटा को कलेक्ट करना ये बड़ा रिग्रेस और थका देने वाला काम है। तो टायर्ड हो जाते हैं इतिहास में कि कौन से किसको माने किसको ना माने, और यही से एक रिसर्चर की जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है और उसकी जो बेसिक समझ है हिस्टोरिकल फिलोसफी की, वो यहाँ पर उसकी हेल्प करती है। क्योंकि दे आर टू टाइप ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एनाइकोलॉजिकल सोर्सेस। और रिसर्चर के लिए, खासकर हिस्टोरिकल रिसर्चर के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी जो सोर्सेज है उनकी समझ हमारे लिए जरूरी है। And what is about the primary source? ये वो सोर्स है, मेन एविडेंसेस है जिनका डायरेक्ट लिंक उस हिस्टोरिकल घटना के साथ है, जो कि हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन के बेस पर लिखे। फॉर एग्जांपल पर्सनल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लीगल रिकॉर्ड्स, गजट नोटिफिकेशंस, अगर आज के लोग बात करें। उसके साथ साथ जो मिनट्स बनाते हैं, ये सारे के सारे प्रेजेंट में हिस्टोरिकल की प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं। फिर हम लोग पास्ट में जाएंगे तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, इसमें केव्स इंस्क्रिप्शन इत्यादि है। या वहां से हमें कोई भी जो आइटम मिला है, ऑर्नामेंट्स हो सकता है, वो पोटरी हो सकती है,
वो कोई और हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो सकता है, जो फिजिकल फैक्ट्स होता है, जो लिंक हो उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल सोर्स के साथ। ये सारे के सारे आपके प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं। उसके अलावा कुछ पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स भी होते हैं, लाइक पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्रीज और स्पीचेस, और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो व्यूज दिए जाते हैं वो, तो जैसे मैंने पहले कहा था रिमेन्स, ये सब, ये सारे के सारे प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स इंटरप्रिटेशंस के मुकाबले ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, रिलायबल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, वैलिडेट होते हैं। इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राइमरली प्राइमरी सोर्स का यूज किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की डिबेट और कंफ्यूजन है वो क्रिएट ना हो। दूसरे आते हैं सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स जैसे मैं पहले बताया, जिनका डायरेक्ट लिंक उस पर्टिकुलर इवेंट के साथ ना होके किसी और मीडियम के थ्रू इनको लिखा जाता है, और यहीं से जो हिस्टोरिकल सोर्स को इकट्ठा करने का जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो यहीं से होती है। और रिसर्चर के लिए जो डाटा को कलेक्ट करता है, प्रॉब्लम आती है सेकेंडरी सोर्सेस को लेकर कि वो किसे सेकेंडरी सोर्स माने, किसे ना माने। अगर उसने यूज भी कर लिया वो सोर्स तो ऑथेंटिक नहीं है, तो डिबेट स्टार्ट होगी, आपको दिक्कत आएगी चीजों को इंटरप्रेट करने को लेकर। इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके हिस्टोरिकल रिसर्च में प्राइमरी सोर्स का यूज करके, आप सेकेंडरी सोर्सेस का भी यूज करते हो तो हमेशा ये देखिए कि जो सेकेंडरी सोर्स बना है उसके पीछे प्राइमरी सोर्स कौन से थे। मैं हमारे टीचर्स हमेशा कहा करते थे कि इफ यू वांट टू, क्या आपको किताब बुक स्टडी करनी है तो सबसे पहले इतिहास में उसके रेफरेंस देखिए कि वो कितने ऑथेंटिक रेफरेंस का यूज कर रहा है। यदि उसने रेफरेंस ऑथेंटिक यूज किए हैं तो आपको उस बुक को स्टडी या रेफर करना चाहिए, अदरवाइज बिना एविडेंसेस के सेकेंडरी सोर्स का कोई वैल्यू नहीं है, स्पेशल हिस्टोरिकल रिसर्च। क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में हम डील करते हैं डिफरेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ, जिसमें कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स दोनों की इंपोर्टेंस है। बट सेकेंडरी सोर्स हम उसे मानेंगे, उसको ही वैल्यू देंगे जिसको, जो कि प्राइमरी सोर्स के बेस पर लिखा गया हो। Then the main thing, criticism of the data, कि जो डाटा हमने सिलेक्ट किया है, चाहे इन द बेस ऑफ प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, जब तक हम उस डाटा को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सेम एज फिलोसॉफिकल रिसर्च, तब तक हम उसके बारे में ऑथेंटिक नहीं हो पाए, चीजों को यूज नहीं कर पाएंगे। फिलोसॉफिकल रिसर्च में भी जब डाटा को एनालाइज करते हैं तो वहां पर भी सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है जो हम हिस्टोरिकल रिसर्च में करते हैं, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। अब ये दोनों है क्या चीज? देखिए, जो भी हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है हम उसे कहते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जिसके अंदर उस कंटेंट की खुद की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और
उसका जो आउटर रियलिटी है वो किस तरीके की है, उसको हम लोग हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स कहते हैं। अब ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है क्या चीज, बड़ा सवाल है, और ये बार के बाद पूछा भी जाता है, उसमें लोग यूज भी करते हैं। देखिए, इंटरनल क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि जो सोर्सेज है हम लोग यूज कर रहे हैं फैक्ट्स में, उसकी प्योरिटी को जब हम लोग वैलिडेट करते हैं, उसको चेक करते हैं, वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। इट मींस इफ टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी सोर्स, क्या वो एक्चुअली प्राइमरी सोर्स है भी या नहीं है, रिलायबल है नहीं है। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म हम लोग ये देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है क्या वो एक्चुअल में फैक्ट्स है, हिस्ट्री का नहीं है, ये किसी ने हमें लिख दिया। और जब तक हम चीजों को एक्सटर्नली क्रिटिसाइज नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स और एविडेंसेस, तब तक हम उसे हिस्टोरिकल सोर्स नहीं मानेंगे। इसीलिए एक रिसर्चर के पास उस हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग और हिस्टोरिकल स्किल की नॉलेज होना जरूरी है, जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। क्योंकि इफ एज ए रिसर्चर वी डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हाउ टू नो अबाउट द फैक्ट्स, हमारे लिए एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करना पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में जो मैं 10 से 15 मिनट लिए, उसके पीछे लॉजिक यही था कि पहले हम जान लें कि व्हाट इज हिस्ट्री और हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, और किस तरीके से हमारी खुद की ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। और जब तक ये सारा प्रॉपरली नहीं बनेगा, तब तक हम डाटा को क्रिटिसाइज करने की जो कैपेबिलिटी है एज ए रिसर्चर, वो हमारे अंदर नहीं होगी। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, मान लीजिए आपने किसी रिसर्च किया गुप्ता जेरा को लेकर, इंस्क्रिप्शन आपको मिला, हम लोग अभिलेख कहते हैं, और काफी सारे अभिलेख है, हम गुप्ता एम्पायर के लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि प्योर हिस्ट्री का एस्पेक्ट हो जाएगा। आपको ये देखना है कि जो इंस्क्रिप्शन है क्या वाकई में वो गुप्ता फ्रेम का है नहीं है, उसमें क्या टाइम दिया गया है। और इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्चर के पास ना केवल हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, वो हिस्टोरिकल स्किल के साथ साथ जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि उसे क्रोनोलॉजी की समझ है, he or she know about the historical facts, sources, तो वो उस इंस्क्रिप्शन के बारे में जान पाएगा, समझ पाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, उसमें इंटरप्रिटेशन मिल जाती है। कार्बोनेटिक उसे समझो, उसके बाद बता सके, तो वो उस डाटा को एक्सटर्नली क्रिटिसाइज कर सकता है कि यस, ये वही सोर्स है जो जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहा है। ये सेकेंडरी सोर्स नहीं है, इट्स द प्राइमरी सोर्स। और जब हम खुद से ही कंफर्म हो जाएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी क्या ये एक्चुअल में भूतकाल का है नहीं है, इससे एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। दूसरा आता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक बार क्लियर होने के बाद कि ये पर्टिकुलर जो फैक्ट्स वो प्राइमरी है, हम लोग आते हैं नीचे की तरफ, किसने लिखा, कब लिखा, उसके अंदर क्या कंटेंट है, उस कंटेंट की इंपोर्टेंस क्या है, उस राइटर, उसकी लैंग्वेज क्या है, और लिखने का इलाका जो उसका पर्सपेक्टिव वो क्या है। फिर हम आते हैं इंटरनल क्रिटिसिज्म की तरफ, जो ये बताता है कि जो फैक्ट्स हमें दिखाई दिया, अगर मिला, एक्चुअल में वो कितना रिलायबल है हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स को लेकर। फॉर एग्जांपल्स, जब हम लोग किसी फैक्ट्स को देखते हैं, बुक को स्टडी करते हैं, हम लोग पहले क्या देखते हैं, राइटर का नाम, खासकर इतिहास में, यस भाई आर एस शर्मा ने लिखी है, ऑथेंटिक स्टोरी से, डी झा ने लिखी, ऑथेंटिक है, डी कुशाम ने लिखी, ऑथेंटिक है, इरफान अबीब ऑथेंटिक है, आर एस शर्मा ऑथेंटिक है। कुछ स्पेसिफिक स्टोरियंस हैं जिनका नाम सुन करते हैं, इनकी जो बुक्स है वो ऑथेंटिक है, आप इसको स्टडी कीजिए, पढ़िए। हम पानी करके हम लोग बात करें,
कुछ हिस्टोरियंस होते हैं जो सब किताब लिख देते हैं विदाउट एनी हिस्टोरिकल एविडेंस, सोचते हैं उसे तवज्जो नहीं देते हैं। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम ये देखें कि बुक का आउटर एस्पेक्ट तो ठीक है, लेकिन जो उसने अंदर कंटेंट लिखा हो कंटेंट भी रिलायबल है नहीं है। वही कहलाता है आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म, कि जो भी उसने कंटेंट लिखा है वो द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स है, लिखने का स्टाइल क्या है उसका, और उसने उन सोर्सेस को ऑथेंटिकेट करने के लिए किस तरह के रेफरेंसेस यूज किए हैं, क्या वो लिखने के लिए कैपेबल है उस कंसेप्ट को, उसकी किसने किस तरह के चीजों को इंटरप्रेट किया है, ये कहलाती है आपके इंटरनल क्रिटिसिज्म। फिर मैंने पहले कहा था if you want to study historians book first about the historians, then you know about his or her perception and his or her capability about the historical facts। यहीं से जो कंसेप्ट है चीजों को लेकर इंटरप्रिटेशन का, उसकी समझ हमारी बननी शुरू हो जाती है। आउटर तो उसने दिखा दिया कि ये प्राइमरी सोर्स है आप यूज कीजिए, बट इंटरनल उसने जो सोर्स यूज किया है दे आर नॉट ऑथेंटिक। तो हमारी जो इंटरनल क्रिटिसिज्म है वो यही कहलाती है कि एक्चुअल में जो लिखा गया है वो वास्तव में वही लिखा गया है, और लिखा क्या ऑथेंटिक है नहीं है, जो लेखक है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, किस तरह का सोर्सेस वो यूज कर रहा है, तभी वो उसके जो डाटा है उसकी रिलायबिलिटी और फैक्ट्स की जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में जाने समझे तो इंटरनल जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है उसकी तरफ हमें चीजों को देखना होगा। उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिया गया है वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स कितना रिलायबल है। रिलायबल इन द सेंस कि जो उसने हिस्टोरिकल फैक्ट्स यूज किया है उसको लेकर जो उसके प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज जो है वो कितने ऑथेंटिक है। हमेशा हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स में उससे ही इंपॉर्टेंस देते हैं जो लिंक करता है हमारे प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स पे, वही हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन दी जाए निकल कर आती है जो कि अदर सोर्सेस कहलाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था लिटरेचर में और हिस्टोरिकल जो रिसर्च है, हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स में यही डिफरेंस होता है कि हिस्टोरिकल जो कंसेप्ट है वो द बेसिस ऑफ सम हिस्टोरिकल एविडेंसेस कहा जाता है, और लिटरेचर में हम कई बार बिना एविडेंसेस के भी बात कह देते हैं जिसका कि हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं होती। जब हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की बात करें तो हमेशा हिस्टोरिकल में ध्यान रखें हु आर द राइटर्स, उसका नाम ही नहीं ध्यान रखें हम लोग, बल्कि ये भी देखे कि वो लिखने वाला है कौन, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या लिखने वाले के पास हिस्टोरिकल स्टैंडिंग है नहीं है, और उसकी हिस्टोरिकल स्किल किस प्रकार की है, और जो भी घटना उसने एक्सप्लेन की है उसके लिए उसने किस तरह के जो हिस्टोरिकल जो रेफरेंसेस है उन रेफरेंसेस का उसने यूज किया है। और एक और बात कि क्या वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, उसका फिजिकल जो सोर्स क्या है, बेसिक सोर्स क्या है उसके, प्राइमरी और सेकेंडरी, और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लिखते वक्त उसने कितना क्लियरली उस फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकल एविडेंसेस। और जब एज ए रिसर्चर हमें किसी भी फैक्ट्स जो डाटा हमारे पास इसके इंटरप्रिटेशन हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हिस्ट्री में कलेक्शन ऑफ डाटा एंड क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा, ये दोनों मेन एस्पेक्ट्स है जिसके बेसिस पूरे का जो रिसर्च है वो हम लोग यूज करते हैं। देन द मेन थिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। सवाल ये उठता है कि बाकी चीजों हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई फलां परसेंट लोगों ने इतना कहा, देन उसके पास ये चीज निकल कर आई, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को इंटरप्रेट करना जो है उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि हम हिस्टोरिकल डाटा को
क्रिटिसाइज करना। जब भी हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को इंटरप्रेट करें, हालांकि इस डाटा को एनालाइज करना हम लोग डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का यूज करते हैं, जिसे हम लोग थीमेटिक एनालिसिस हम बोलते हैं। जब हमें चीज निकली, हमने थीम बनाई और चीजों को हमने आगे एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। जब डाटा को इंटरप्रेट करें, क्योंकि हर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जो नेचर वो यूनिक होती है, वो डिफरेंट होता है अलग हिस्टोरिकल फैक्ट्स के से, बिल्कुल डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कन्वेंशन इंडिया की हम लोग बात करें, फिर हड़प्पन बिल्कुल डिफरेंट होगा, हड़प्पन बिल्कुल डिफरेंट होगा, पोस्ट हड़प्पन बिल्कुल डिफरेंट होगा, नियोलिथिक बिल्कुल डिफरेंट होगा। उससे पहले जाए तो पैरालिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और न्यू मेसोलिथिक एज, इनके बिल्कुल डिफरेंट होंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स। और मिडाइवल और मॉडर्न कंटेम्परेरी वर्ल्ड के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि बिना उनके रिलेवेंस के और यूटिलिटी के हिस्टोरिकल फैक्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए एक हिस्टोरिकल रिसर्चर के पास इमेजिनेशन पावर, इंटरप्रेटिव पावर और चीजों को इंटरप्रेट करने की एबिलिटी है वो होनी चाहिए, जो कि हिस्टोरिकल स्किल्स का एक पार्ट बन जाता है। हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन में रिसर्चर को कोज एंड इफेक्ट के बेस पर चीजों को इंटरप्रेट करना चाहिए। थोड़ा सावधानी भी बरतनी होगी, क्योंकि हर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है अदर फैक्ट्स के साथ। से मैं पहले भी कहा था, क्योंकि जब हम चीजों को इंटरप्रेट करते हैं खासकर हिस्टोरिकल फैक्ट्स में, तो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन जो है या जो ह्यूमन परसेप्शन है वो हावी हो जाता है। क्योंकि जो फिलोसोफर जॉन डीवी, उनकी हिस्ट्री बहुत बेहतरीन किताब है, आप अगर नेट पे चाहो तो देख सकते हो। उसमें वो कहते हैं कि व्हेन हिस्टोरियंस इंटरप्रेट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, उस इंटरप्रिटेशन में उसकी जो पर्सनल आइडियोलॉजी है हिस्टोरियंस की, तो पर्सनल थिंकिंग है, वो उस इंटरप्रिटेशन में इस तरीके से मिक्स हो जाती है कि हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन जो है वो एक डिफरेंट फ्रेम में हमारे सामने निकल आती है। उसका रीजन है बिकॉज हिस्टोरिकल एविडेंसेस और फैक्ट्स इज रिलेटेड टू द पास्ट, और जो हिस्टोरियंस है वो प्रेजेंट में जीता है, और वो पेंडुलम की भांति पास्ट टू प्रेजेंट, प्रेजेंट टू पास्ट वो मूव करता रहता है। तो हिस्टोरियंस प्रेजेंट टाइम फ्रेम का है और हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वो पास्ट टाइम के है। उस टाइम की अगर उसके पास इमेजिनेशन पावर है, सारे सोर्सेज है, तो वो हिस्टोरिकल डाटा इसको इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए उसे अज्यूम करना होता है कि इस तरह का रहा होगा। अगर फैक्ट्स आते हैं तो वो इंटरप्रेट करता है, नहीं तो बिटवीन द टू लाइन जो मीनिंग्स है वो उसे इंटरप्रेट करना पड़ता है। इसीलिए क्रोनोलॉजी, इंटरप्रिटेशन, फैक्ट्स, हिस्टोरिकल सोर्सेज, एविडेंसेस, ऑथेंटिसिटी ऑफ द एविडेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट, इसकी समझ एक हिस्टोरिकल सोर्स के पास होनी चाहिए। और द मेन सवाल कि हाउ टू राइट प्रपोजल ऑन हिस्टोरिकल रिसर्च, कि हम हिस्टोरिकल रिसर्च में अगर प्रपोजल बनाए, किसी भी प्रपोजल बनाए, तो उस प्रपोजल को बनाने के हमारे पीछे किस तरह का एक पैटर्न हो, कितने चैप्टर हो,
और किस तरीके से इनको प्रेजेंट करें। तो अगर हम इन सबकी बात करें तो जो एक कंसेप्ट उभर के आता हमारे सामने कि हाउ टू राइट अ प्रपोजल ऑन हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हम उन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हैं जो पैटर्न हम अदर रिसर्च में करते हैं, बट थोड़ा सा डिफर हो जाता है अबाउट द आवर अपना टाइटल ऑफ द रिसर्च। सेम इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम लोग, पहले टाइटल। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग प्रपोजल फ्रेम करें हिस्टोरिकल रिसर्च में, किसी भी रिसर्च में, तो एक ब्रॉडर एरिया लीजिए, उस ब्रॉडर एरिया में से अपने आप को स्पेसिफाई कीजिए। कोई जब तक एक आप ब्रॉडर एरिया नहीं सिलेक्ट करोगे तब तक आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट नहीं कर पाओगे जिस पर आप इफ यू वांट टू डू द रिसर्च। देन पहला टाइटल का सिलेक्शन करना ही हिस्टोरिकल रिसर्च में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपका टाइटल या तो रिसर्च आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं, वो आपकी हो गई, तो आपको टाइटल को फ्रेम करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। प्रपोजल बनाते वक्त या लिखते वक्त हमेशा फर्स्ट इंट्रोडक्शन, अब बताइए उस टॉपिक के बारे में कि वो है क्या चीज। फिर उसके बाद उसी में आपका जो जाता है नीड ऑफ द स्टडी, कि व्हाई वांट टू डू रिसर्च, कि आप क्यों करना चाहते हैं रिसर्च। तो कुछ एस्पेक्ट जुड़ता है, तो आप बताया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि जो आपका एरिया है उस एरिया में पहला कितना वर्क हो चुके हैं, और जब तक आप इंट्रो नहीं लिखेंगे, रिव्यू नहीं ऐड करेंगे, नीड ऐड नहीं करेंगे, तब तक आपका जो प्रपोजल है वो प्रॉपरली नहीं बन पाएगा। इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट में अगर हम लोग बात करें, पहला पॉइंट पर इंट्रोडक्शन का, उसी में कुछ एस्पेक्ट्स रिव्यू का जोड़िए आप। फिर लास्ट में लिखिए नीड ऑफ द स्टडी। नीड ऑफ द स्टडी का मतलब है कि व्हाई यू वांट टू द रिसर्च ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हिस्टोरिकल रिसर्च। देन आपका बात सब लोग कहते हैं ना टाइटल ऑफ स्टडी लिखिए, और फिर आएगा ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द टाइटल। रिसर्च में जब लोग कहते हैं सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे, उसका मतलब यही होता है कि आपके पॉइंट 1 से इंट्रोडक्शन से लेकर बिब्लियोग्राफी टिल एंड तक उनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होगी, एक के ऊपर दूसरा जो है वो बेस होगा। यदि आपका एक भी स्टेप हट गया या आपने प्रॉपर नहीं किया तो जो फर्दर जो स्टेप्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगे। इसलिए कहते हैं रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड रिगरस प्रोसेस। उसका मतलब यही होता है, सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि हम प्रिसाइज होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। रिगरस का मतलब होता है कि हम उस काम को कितना डीपली और प्रॉपर तरीके से वर्क हम लोग कर रहे हैं। पहले इंट्रो लिखिए, उसमें कुछ रिव्यू का पॉइंट जोड़िए, देन स्टोरी लिखिए, देन टाइटल लिखिए अपना, फिर लिखिए ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द की टर्म्स। यानी कि जो आपने टाइटल बनाया है उसमें की टर्म्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई हिस्टोरिकल रिसर्च का कोई एरिया लिया, अगर आप लोग मुझे बता सके तो हम उसमें आगे बात कर सके। आप मुझे बताया कोई एनीवन? हेलो, चलिए सिंपल सी बात करते हैं। टू स्टडी द परसेप्शन ऑफ टीचर्स अबाउट द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, ये आपने एक सिंपल टाइटल लिया, टू स्टडी द परसेप्शन ऑफ हिस्ट्री टीचर्स अबाउट द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, हमने एक टाइटल लिया, बोर्ड टाइटल। अब इस हमारे 3 कंसेप्ट है, हिस्ट्री टीचर, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स एंड द परसेप्शन। So as a researcher, you should clear about the what they mean by the perception, कि एक्चुअल में ये परसेप्शन का मतलब क्या है और आप परसेप्शन किसे मान के चल रहे हो। और परसेप्शन मतलब हो सकता है टीचर्स की खुद का आइडियोलॉजी, परसेप्शन अबाउट टेक्स्ट बुक्स एंड परसेप्शन अबाउट द क्लासरूम प्रोसेस। यू शुड बी क्लियर।
और ये आपको लिखना होगा। देन हिस्ट्री टीचर, you want to do the history, you want to take the as a sample history, the PGT 11th class 12th class or higher classes, you should be clear. अब क्लियर होगा और आपको लिखना भी होगा। देन हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, सेम वही कि टेक्स्ट बुक्स जो है आप किस क्लास की लेना चाहते हो, ये क्लियर होगी। इसे हम लोग कहते हैं क्लेरिफिकेशन ऑफ द की टर्म्स, कि आपके टाइटल में जो चीजें आई हैं वो कितनी क्लियर है, उसको वो क्लियर करना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज आपका रिसर्च क्वेश्चन, कि आपकी जो नीड है उस नीड के बेस पर आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम करोगे। और रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम करते वक्त हमेशा जो आपका टाइटल है रिसर्च का, उससे प्रॉपर लिंक उसका होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि एक क्वेश्चन आप डायरेक्ट लिंक कीजिए अपने उस टॉपिक के साथ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। व्हाट टीचर थिंक अबाउट द हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स and what are the perception of teachers of history textbooks about the teachers? तो जब आप रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे प्रॉपर तरीके से, तभी आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम कर पाएंगे। हमेशा ध्यान रखिए आपका जो टाइटल होगा और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है उनमें प्रॉपर लिंक होना चाहिए। इफ देयर इज नो लिंक बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो आपके जो प्रपोजल है या जो रिसर्च का जो आप लिखेंगे इन फ्यूचर प्रपोजल के बेस पर ही या आप जो बनाएंगे, तो उसमें प्रॉपर आपकी गलतियां होंगी। जितने आपके टाइटल क्लियर होगा, रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस डिपेंड ऑन योर एरिया क्लियर होगी, आपके ऑब्जेक्टिव उतने ही क्लियर होंगे। कई बार हम लोग रिसर्च देखते हैं तो 8, 10, 12, 15, 16 जो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स नॉट मोर देन 5 to 6, कि आपके जो रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव के नहीं होने चाहिए कि आपका पूरा एक पेज जो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव फ्रेम से आपका फिल हो जाए। जितना आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे वो आपके 5 या 6, हद से ज्यादा आपके 6 तक हो सकते हैं, बट डिपेंड ऑन योर टॉपिक। इसीलिए हमेशा कहा जाता है ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, ऑब्जेक्टिव शुड बी अकॉर्डिंग टू योर टाइटल एंड योर रिसर्च क्वेश्चंस। देन मेथोडोलॉजी, आप क्या मेथड यूज कर रहे हो, एक बात ध्यान दीजिएगा, मेथोडोलॉजी ऑलवेज डिपेंड ऑन योर रिसर्च टाइटल एज वेल एज योर रिसर्च प्रॉब्लम। अगर हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग बात करेंगे तो ये भी डिपेंड करेगा, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च में भी कई तरह की चीजें हम लोग आके देखते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च भी कई तरह से हो सकता है, बिब्लियोग्राफी रिसर्च हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट रिसर्च हो सकता है, इंस्टीट्यूशन रिसर्च हो सकता है, किसी एक खास इवेंट्स में रिसर्च कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करेगा आपके टॉपिक के ऊपर। सिर्फ इस तरीके से टेक्निक्स यूज करेंगे, डिफरेंट डाटा यूज करेंगे। देन डिलिमिटेशंस, डिलिमिटेशंस में हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि इतिहास का जो एरिया है वो काफी वास्ट होता है। हालांकि हम लोग लिमिटेशंस भी बड़ी भी यूज करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस होता है कि हम अपने आप कितना समेट के चल रहे हैं, कितना हम लोग काम कर रहे हैं, वही हमारी लिमिटेशंस आगे बनते चला जाता है। अगर हम सिर्फ एशियन टाइम फ्रेम में कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स पे कर रहे हैं, तो हमारा एरिया बड़ी होगा, हमें लिखना भी होगा कि द रिसर्च विल बी कंसाइज्ड ओनली एशियन इंडिया, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो लिमिट होगा, ना कि पूरे एरियाज को लेकर। लास्ट में आपके रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। जब हम लोग बिब्लियोग्राफी की बात करते हैं तो हम उन सारे बुक्स का
कमीशन कमिटीज का, ये जो ऑनलाइन सोर्सेज है उनके बारे में लिखे जो हमने उसमें यूज किया है बट विद द एपीआई फॉर्म। पेज नंबर भी लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हिस्टोरिकल में हमेशा जो ऑथेंटिसिटी होती है उसको लेकर जो क्वेश्चन जो उठते हैं वो खत्म हो जाएंगे यदि आप विद पेज नंबर उसके बारे में आप लोग लिख देंगे। तो अल्फाबेटिकली लिखिए आप लोग उसको, या एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी से आप लोग लिखिए, इट्स डिपेंड ऑन यू, बट इट शुड बी एपीआई फॉर्म। जो एपीआई फॉर्म है उसमें होना चाहिए, तभी आप लोग जो हिस्टोरिकल प्रपोजल है उसको प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे। And it's about the historical research. If you have any query in a question, अगर आपको कोई सवाल हो, पूछना चाहते हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। फिर हम लोग बात करेंगे फिलोसॉफिकल रिसर्च को लेकर। Hello ma'am, is there any question? Hello? Hello? If you have any question, query, तो आप लोग चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। हम आई विल ट्राई टू द आंसर। रेनू मैम, माय वॉइस इज क्लियर? हेलो Sir, I think do not have anybody question. Nobody is sharing. स्टूडेंट्स हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग फिलोसॉफिकल रिसर्च पे हम लोग बात करेंगे। Right now, I do not have seen any comment. You can proceed on to the another topic. I philosophical. अगर कोई सवाल है तो कैन टेक द 5 मिनट ब्रेक? क्या हम 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं मैम? Yes, you can, sir. ओके, थैंक यू मैम। अब हो गया ठीक, ओके। अब मैं स्टार्ट। मैम कोई सवाल है सपना मैम? हेलो हेलो, हाँ हाँ, हेलो जी मैम। हाँ जी सर, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है सर, अभी तक किसी पार्टिसिपेंट्स का आया नहीं है एनी क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप अपनी कंटिन्यू कर लीजिए डॉक्टर सर। सपना मैम, मैं सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ पानी पीने के लिए, देन विल कंटिन्यू मैम। सर यू विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक। जी जी जी। सो पार्टिसिपेंट्स, सर ने 5 मिनट का ब्रेक लिया, 5 मिनट के बाद हम स्टार्ट करते हैं, प्लीज 5 मिनट का वेट कीजिए एंड स्टे विद अस फॉर 5 मिनट्स ओनली, आफ्टर द 5 मिनट्स द क्लास विल स्टार्ट अगेन, ओके।
Hello. Ajit sir. Sir is back again. Thank you, ma'am. Now we will start the topic again. All participants, please join the link first. So you can start now. Okay, thank you, ma'am. Okay, sir. Thank you. The first lecture we discuss about the historical research. और हिस्टोरिकल रिसर्च में जो मेन कंसर्न हम लोग डिस्कस किया था उसके बारे में क्वेश्चंस आई थिंक मैम सेज नो देन वी मूव फर्दर द फिलोसॉफिकल रिसर्च और फिलोसॉफिकल मेथड्स इन रिसर्च इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर ऐसा ये कहे कि फिलोसॉफिकल रिसर्च में हम लोग बात करें तो फिलोसॉफिकल रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च ने ठीक उसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम लोग मैं मतलब आगे बात करेंगे जिस तरह के डाटा से हम लोग बात करते हैं एक्चुअली फिलोसफी रिसर्च है क्या प्लेटो से लेकर सुक्राट से लेकर और आज के कंसेप्ट में देयर आर लॉट्स ऑफ चेंज इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी बिकॉज इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग और हर ह्यूमन बीइंग का द वे ऑफ थिंकिंग इज डिफरेंट है इसलिए कहते हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैव देयर ओन फिलोसफी और वो अपने आप में फिलोसोफर है व्हाट डू यू मीन बाय द फिलोसफी अगर हम लोग वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में बात करें जैसे लव ऑफ विजडम और इंडियन पर्सपेक्टिव में लोग बात करते डिफरेंट वे और हाउ टू नो अबाउट एनी फैक्ट्स क्यूरियोसिटी हमारे अंदर होती है चीजों को जानने की ह्यूमन बीइंग और यही क्यूरियोसिटी जो है हमें फिलोसॉफिकल थॉट्स को डेवलप करने में हेल्प करती है जब हम लोग फिलोसफी के तो वेस्टर्न कंसेप्ट में बात करेंगे हाउ टू नो अबाउट द एनीथिंग कि हम किसी भी कंसेप्ट के बारे में कैसे जाने और यही वजह है कि जब एपिस्टेमोलॉजिकल बेस फिलोसफी की बात करते हैं दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट हम सब निकल कर आते हैं क्योंकि फिलोसफी में भी एक क्लियर डिमार्केशन है इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स में तो दर्शन शास्त्र हम लोग बात करेंगे डिफरेंट फ्रॉम द फिलोसफी बट इन लेमैन अप्रोच हम उससे एक सिंपल वे में यूज कर लेते हैं वैसा वर्सा इंडियन पर्सपेक्टिव में दर्शते इति दर्शनम यानी कि वो दृष्टिकोण जो हमें चीजों को देखने में हेल्प करता है इसलिए कहता है दर्शन मीन्स क्या है दर्शते इति दर्शनम यानी कि वो दृष्टिकोण जिसके द्वारा हम किसी भी चीज के बारे में देखते हैं समझते हैं और ये जो दर्शन है हम लोग दर्शन इंडियन फिलोसफी में कहते हैं ये लाइफ और द बियॉन्ड द लाइफ उस कंसेप्ट्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग है इसको डेवलप करने में हेल्प करता है बट इंडिया में शब्द की हम लोग बात करेंगे तो शब्द से बिल्कुल डिफरेंट में जाते हैं लेकिन जो हम लोग जनरल यूज करते हैं खासकर हम लोग फिलोसफी वर्ड्स कहते हैं इट्स अ वेस्टर्न कांसेप्ट ऑफ दर्शन ये वेस्टर्न कांसेप्ट है जिसे हम लोग फिलोसफी टर्म्स यूज करते हैं क्योंकि जो वेस्टर्न कांसेप्ट्स का जो ओरिजिन है उसका डिफरेंट तरीके से हुआ है हाउ टू नो अबाउट क्यूरियोसिटी ये चीजों को लेकर वो किस तरह से डेवलप हुई है जब हम लोग फिलोसफिकल मेथड की बात करते हैं इन जनरल फिलोसफी एक अलग मेथड आता है बट व्हेन वी यूज फिलोसफिकल रिसर्च मेथड इन एजुकेशन उसमें मोर वो चीज सेम होती है बट थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है अबाउट योर रिसर्च एरिया फिलोसफी फिलोसफी जो रिसर्च है वो डिस्क्राइब करता है व्हाट शुड बी इज इट इन नॉर्मेटिव इन इट्स नेचर और जो फिलोसफिकल रिसर्च है वो रिगरस और इन डेप्थ क्रिटिकल एनालिसिस है about the basic assumptions, theories, thoughts, views, justification, or normative assumptions and perception about any thoughts.
A philosophical research requires rigorous, organized, systematic, meaningful consistency, or consciousness of assumptions, as well as the methodological awareness about the thoughts. इसलिए कहा जाता है कि जो philosophical research है is a qualitative in nature, especially when talking about the thoughts, perceptions, assumptions, basic assumptions, or basic thoughts about the any philosophers. और ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है खासकर फिलोसफी के अंदर जब हम लोग यूज करते हैं, इज द कलेक्शन ऑफ एक्सटेंसिव नैरेटिव डाटा ऑन मैनी वेरिएबल्स, इस पर जो डिपेंड करेगा आपके इस टॉपिक के ऊपर, और जिसके लिए एक इंसाइट चाहिए होती है द रिसर्चर टू नो अबाउट द फिलोसॉफिकल थॉट्स। और इसमें भी वही फ्रेमवर्क बेसिक हम लोग यूज करते हैं जो इन जनरल एनालिसिस फ्रेमवर्क हम लोग यूज करते हैं। अब ये नेचर है क्या इस फिलोसॉफिकल मेथड की, जब हम लोग बात करेंगे रैशनल इंक्वायरी ऑफ एनी व्यूज, और रैशनल का मीन्स यहाँ पे है लॉजिकल, और खासकर हम लोग एजे अयर के जो लॉजिकल थिंग्स की हम लोग बात करते हैं, हम लोग उसमें यूज करते हैं कि किस तरह की जो चीजें हैं हमारे सामने वो है क्या, वो क्यों आई, उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजंस क्या है, किस प्रोस्पेक्टिव में वो व्यूज दिया गया, उस व्यूज ने किस तरीके से हमारे सिस्टम को इफेक्ट किया। जब हम उसको रैशनल का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एविडेंसेस एज वेल एज द फैक्ट्स। एक लॉजिक होगा कि अगर कोई घटना घटी है, जो हम लोग कॉज एंड इफेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री में, वो यहाँ कहते हैं रैशनली, कि हर चीज के पीछे एक रैशनल होता है। इफ टॉकिंग अबाउट द नेशनलिस्ट व्यू, अगर हम प्रगतिवाद की हम लोग बात करेंगे तो उसके पीछे भी एक प्रॉपर रैशनल तक कि वो क्यों डेवलप हुआ। सेम एज द मार्क्सिस्ट फिलोसफी हम लोग बात करेंगे, उसके पीछे एक रैशनल था। तो एक रैशनल इंक्वायरी है अबाउट द सर्टेन व्यूज, assumptions एंड बेसिक जो एक कॉन्सेप्ट्स है उनकी। देन इट्स ये एक तरीके से डिटरमाइनिंग द फिलोसॉफिकल मेथड्स है, इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ आइडियाज एंड द क्लैरिफाइंग देम। जो लोग प्रैग्मेटिज्म के हम लोग बात करते हैं बेसिकली, कि जो भी आइडियाज है उसका असल मतलब क्या है, उसको हम किस तरह क्लैरिफाई करते हैं, और उसको पीछे कोई ना कोई बेसिक लॉजिक होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कोई भी आइडियाज हम तभी यूज करते हैं जब, जैसा कि जो प्रैग्मेटिज्म अप्रोच कहते हैं, उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी हो, कोई ना कोई उसकी इंपोर्टेंस हो। तो पूरी जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है वो कहीं ना कहीं इसी जो फिलोसॉफिकल जो अप्रोच है उसके ऊपर डील करती है। उसके साथ साथ जो फिलोसॉफिकल रिसर्च है वो डील करता है फिलोसोफाइजिंग और अचीविंग नॉलेज। जो नॉलेज जो कंसेप्ट है वो किस तरह से डेवलप हुई है, जो किसे फिलोसोफाइज करते हैं, और किसी भी कंसेप्ट को हम कैसे क्लैरिफाई करें, किस तरीके से उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स है वो चीज देखें। ये सारा कहीं ना कहीं जो है हिस्टोरिकल जो मेथड ऑफ फिलोसॉफिकल जो फिलोसॉफिकल रिसर्च है उसके कंसेप्ट से निकल कर आती है। अब जो स्टेटस ऑफ नॉलेज कैसे जाने हम लोग, थ्रू एनालाइज द थ्रू एनालिसिस ऑफ द मीनिंग एंड रिलेशन बिटवीन different concept or
एक्सपोजिशन ऑफ अजम्पशंस, कि हमारे सामने जो डिफरेंट थॉट्स है, जो जम्पशंस है, जो कंसेप्ट्स है, उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है। उसके साथ साथ जो एजुकेशनल थ्योरीज है, जो कंसर्न आइडियाज है, उनको हम किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई करें, प्रैक्टिस में किस तरीके से लाएं, ये कहीं ना कहीं जो फिलोसॉफिकल स्टडीज एजुकेशन है उसके एम के साथ ये जुड़ जाता है। अब इसका थर्स्ट एरिया है क्या? जब हम लोग बात करते हैं फिलोसफिकल रिसर्च की, हम लोग बात करते हैं कि हम फिलोसफिकल रिसर्च करें तो किस एरिया में करें। द मेजर थर्स्ट ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, एजुकेशनल फिलोसफी, तो हम लोग प्योर फिलोसफी की बात नहीं करेंगे बिकॉज वी डील विद द एजुकेशनल सिनेरियो, तो हम एजुकेशनल फिलोसफी की बात करेंगे जिसमें हम लोग बेसिकली रिसर्च के जो ये जो बनते हमारे टू स्टडी ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द फिलोसोफर or a particular group of philosophy, कि यदि किसी फिलोसफर ने एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव में कोई व्यू दिया है, तो कंट्रीब्यूशन दिया है, या फिर जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है फिलोसफी के, वो हमारे फिलोसॉफिकल रिसर्च का एरिया बनते। फॉर एग्जांपल्स, इफ यू टॉकिंग अबाउट द रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, प्लेटो, सुकरात, डेकार्टे, हॉब्स, लॉक, अगर इधर मॉडर्न टाइम फ्रेम में आए तो मार्क्स, हीगल, जॉन डेवी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इनके जो थॉट्स थे, उन थॉट्स ने किस तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने में, या फिर जो हमारा करिकुलम जो कंसेप्ट्स है उनको लेकर जो भी अपने व्यूज दिए, तो कंट्रीब्यूशन है, उसको जब हम लोग प्रेजेंट में उसकी जो रेलेवेंस है, उसकी इंपोर्टेंस है, उसको देखने की बात करते हैं, तो ये हमारा फिलोसॉफिकल जो रिसर्च है उसका एक बेसिक फर्स्ट एरिया बनता है। उसके साथ साथ there are different type, there are lots of school of thoughts in philosophy. Analytical school of thoughts है, आइडियलिज्म है, नेशनलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, रियलिज्म है, मार्क्सिज्म है। मैम, I will try to do summarize within 10 to 15 minutes. Okay, I will try, मैम, क्योंकि मैम दोनों के दोनों एरिया जितने वास्ट है कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो शायद, बट फिर आई विल ट्राई मैम। देन उसके साथ साथ फिलोसफर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके साथ साथ जो फिलोसॉफिकल जो व्यूज विजन है जो लिंक करता हूं मैं स्कूल सिस्टम के साथ, उसको हम देख सकते हैं। उसके साथ स्टडी ऑफ द बेसिक जो जब थर्स्ट एरिया वो है कि जो फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो क्लासरूम प्रोसेस है उसमें किस तरीके के जो फिलोसॉफिकल आइडियाज है, करिकुलम है, वो भी एक हमारा बेसिक एरिया हो सकता है। अब हम जैसे कि मैम का एक मैसेज आया है, हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हम चीजों को समराइज करें, बट एनी हाउ, तो हम किस तरीके से, सबसे पहला पॉइंट आपका आता है स्टेप्स ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। द फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। जिस तरीके से हम रिसर्च में आइडेंटिफाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, ठीक उसी तरीके से फिलोसॉफिकल रिसर्च में भी हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। वो एरिया हो सकता है, जैसे आपने कुछ कहा, यानी पर्सनैलिटी, यानी फिलोसफर, क्लासरूम प्रोसेस, पेडागोजिकल स्किल्स, करिकुलम, a particular philosophical system, a particular school of thoughts, and a particular ideas, particular perception system, practices, philosophical issue, subject, or philosophize any concepts. I think then इसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसमें हम लोग जो हमारा रिसर्च एरिया है उस पर हम लोग लेकर जो भी रिसर्च हुए हैं उस पर बात करते हैं। रीडिंग एंड डिस्कशन,
क्योंकि फिलोसॉफिकल रिसर्च में जो रीडिंग्स है, डिस्कशंस है, वो काफी वैल्यू रखता है। इंटेंसिव रीडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर की नीड्स होती है इन द बेस ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। उसके पास थिंकिंग एंड एक्युमुलेशन ऑफ द टाइमिंग, कि जो भी हमने फिलोसॉफिकल थॉट्स लिए हैं उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता है, एक डीप थिंकिंग की आवश्यकता है फैक्ट्स के बारे में क्लैरिफाई करने के लिए। और जब तक हम चीजों को डिफरेंशिएट करना नहीं सीखेंगे अबाउट द डिफरेंट फिलोसॉफिकल कांसेप्ट्स, तो हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इसमें नेक्स्ट स्टेप हो जाता है आपका समराइजेशन, डिस्क्रिप्शंस, कंपैरिजन, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स, और उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं टूल्स ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, अजम्पशनलेस से हम लोग बात कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ जो अदर कंसेप्ट्स है फिलोसॉफिकल रिसर्च में, आई थिंक रिफ्लेक्शन, सेल्फ कोरिलेशन, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, प्रैक्टिकल एंड इवैल्यूएटिव नेचर, क्रिटिसिज्म। अगर फिलोसॉफिकल मेथड्स की बात करें तो इसमें डायलेक्टिक मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, लॉजिकल क्रिटिकल जो इंक्वायरी उसको हम यूज कर सकते हैं, प्रैग्मेटिक जो अप्रोच है उसको यूज कर सकते हैं, एंड फिनोमेनोलॉजिक जो फिनोमेनोलॉजिकल जो मेथड्स है उसको यूज कर सकते हैं, देन एनालिसिस। हालांकि एक फिलोसॉफिकल रिसर्च के जो अलग अलग डायमेंशंस है जो डिपेंड करता है अपनी जो फिलोसफिक जो रिसर्च है का जो एरिया है उसके ऊपर। ठीक इसी तरीके से जो एनालिसिस ऑफ डाटाज है उसमें भी कलेक्शन ऑफ डाटाज के अंदर भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स का यूज कर सकते हैं, जैसा हम लोग डिस्कस किया था अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च। फिर यहीं पर सेम बात आती है स्टोरेज की तरह, जो डाटाज को किस तरीके से हम लोग क्रिटिसाइज करें इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर हम लोगों ने जैसे हम डिस्कस किया था हिस्टोरिकल रिसर्च में हाउ टू एनालाइज द हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड डाटाज इंटरनली एक्सटर्नली, उसकी समझ हमारी है तो फिलोसॉफिकल डाटा को एनालाइज करना इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म के बेस पर हमारे लिए इजी होगा। फिलोसॉफिकल रिसर्च में भी हमसे वही स्टेप्स फॉलो करते हैं जो हम एक जनरल रिसर्च में करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, इंट्रोडक्शन, literature, the study, title of the study, operation definition of key terms, research questions and hypothesis both depend on your area. Then object is methodology. मेथोलॉजी में थोड़ा सा डिफर हो जाता है हमारा अदर्स के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर हम किसी एक पर्टिकुलर फिलोसॉफिकल मेथड का यूज करते हैं, चाहे वो एनालिटिकल मेथड हो, लॉजिकल क्रिटिकल मेथड हो, फिलोसॉफिकल मेथड हो, या कोई और अप्रोच हो। तो इसी तरीके से जब हम डाटा को एनालाइज इंटरप्रेट करते हैं तो भी हमें उसी मेथड के अंदर जो पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है वो हम लोग यूज करते हैं। फिलोसॉफिकल रिसर्च में भी जो चैप्टराइजेशन होगा वो मोर ओवर आपका 5 होगा। चैप्टर फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन लिखते हैं, स्टडी लिखते हैं, देन आपका सेकंड लिटरेचर, थर्ड मेथोलॉजी वाला एस्पेक्ट्स, 4 डाटाज इंटरप्रिटेशन, 5 कंक्लूजन एंड समरी, और इसी में जो लास्ट में हम लोग बिल्कुल एंड में यूज करते हैं बिब्लियोग्राफीज। और कई जगह समरी का बिल्कुल एंड में करते हैं, डिपेंड ऑन योर सुपरवाइजर। आई थिंक मैं इतने मुझे शॉर्ट में मैं जो कर पाया उसके लिए हम थोड़ा सा आपसे वो चाहेंगे, इफ एनी क्वेरी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो। हालांकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कट एंड शॉर्ट विद इन 10 मिनट्स। जी मैम, थैंक यू मैम। Anyone wants to ask any question, they can ask now.
Otherwise we have to finish this lecture, this sum up. हमें इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा. अगर किसी के कोई क्यूरीज हैं वो सर से अभी पूछ सकते हैं. क्योंकि मैम हार्डली 10 मिनट्स में फिलोसफिकल रिसर्च को एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. 10 to 15 मिनट. बिल्कुल सर, बट क्या करें, टाइम क्या करें, पर सर टाइम की शॉर्टेज हमेशा ही मैंने रहती भी है. शॉर्ट तक आगे मैं थोड़ा बढ़ाऊं. हाँ जी, हाँ जी अभी सर. तो थोड़ा सा एक्सक्यूज चाहिए आपसे कि इतना टाइम थोड़ा सा नहीं हो पाता. But anyway, if any query question आप Ajit sir, sorry to make you disturb. Our esteemed resource person RS Yadav sir has already joined because as we have already circulated the schedule, so we are getting late. Sorry for making this inconvenience. sir. Yes. He's in waiting room, I think. Hello. 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 हाँ जी मैम. Yes ma'am. Thank you sir. Thank you Renu ma'am. Now please share the session. Okay. You can invite Dr. Sapna. Okay. Now, Sapna ma'am, you can join the session now. Yes ma'am. Okay ma'am. Okay, now I'm leaving the session. Thank you very much everyone. And thank you sir also. Okay, thank you Renu ma'am. Good morning. Good morning and welcome to the second session of our 15 days refresher course organized by Education Department, Baba University, Rohtak. In our second session of second day refresher program, we have an eminent personality with us, Professor Emeritus R.S. Yadav sir. Sir, are you there now? Yes. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Please switch on your video too, sir. Yes. You are available on my screen. Am I audible to you, sir? Yes. Continue. Yes, sir. So, audience, before introducing Professor R.S. Yadav, sir, I would like to clear the term emeritus professor, as our eminent speaker or resource person, Professor R.S. Yadav, sir, is an emeritus professor today. Many of us generally did not know this term. Many of us are not familiar with the meaning of this term, emeritus professor. And it's a great honor for us that in our today's session, we have emeritus professor. Emeritus generally means a title, an honorary title conferred by the universities to the retiring professors for their outstanding past work. They had so actively engaged during their lifetime in their academic field that the university had granted them now also the title of the emeritus professor. We are very fortunate enough, all the students and all the participants here, that today sir is going to explain us the meaning of grounded theory based on qualitative research with us. Sir has a rich experience of 41 years in the field of academics and research. Sir has guided 16 PhD scholars during his research tenure, and he himself had done his doctorate from one of the international renowned University of India, that is Jawaharlal Nehru University. During that time, it was very difficult to get me enrolled there and done their doctorate. And sir has done that. Good, sir. Sir is a visiting professor of many reputed universities of India, like University of Mumbai, Punjab University, Allahabad University, Rajasthan University, and many more universities. During his lifetime as a professor, sir has visited across the world for research expeditions.
Sir has visited Hong Kong in 1992 to attend international conference. He has visited London to attend International Academic Association. Moreover, he had visited Kazakhstan to attend International Central Asian Dialogue. It's a very prestigious thing that he is associated with the Ministry of State for External Affairs with Government of India. We are very lucky. I feel very lucky now. Means Sir has been recently awarded in 2020 by Indian Political Science Association for Senior Political Scientist National Award. He is an author of many books, edited many chapters, and near about 90 research papers published under his name. Sir had done a minor research project sponsored by UGC on India and Southeast Asia, a study of India's post-Cold War foreign policy initiatives in 1999. सर का इंट्रोडक्शन करते हुए वेरी गुड लाइन्स इट केप्ट इन माय माइंड, मेरे माइंड में आई एंड आई डेफिनेटली नाउ वांट टू शेयर विद यू आल्सो. बहुत ही अच्छी खूबसूरत लाइन्स हैं. A river's flow is good as long as its banks are strong. No doubt, our nation's edifice can be built on the shoulders of strong academicians, and we have very strong and active academicians with us. Professor R.S. Yadav ji is one of us from them. Sir? Yes. Should I continue? Professor R.S. Yadav? Yes. Sir, now I would like to request that please you join the session Okay. and share your knowledge, your valuable knowledge on grounded theory with all of us. Okay. Thank you, Dr. Sapna, for the kind words. Ladies and gentlemen, this afternoon I'm going to share some of my random thoughts on grounded theory because I don't have any option to speak the topic of my choice because the host assigned me this task that I should speak on this. So today I'm sharing some of my ideas on grounded theory. Actually, after Second World War, there start a process in social sciences that is the behavioral approach, which means how scientifically you quantify data, and on the basis of data analysis, it is effort has been made to make social sciences more and more scientific. But in that case, after some time, it was also realized by the same school of thought, that is David Easton, who gave the behavioral approach, that everything cannot be confined to data or quantification. Value system also has inherent capability of learning, and that is why some qualitative factors also has to be considered if you have to analyze things scientifically. On the basis of that backdrop, we find there are two types of approaches followed in empirical studies: quantitative approach and qualitative approach. Though there is a paradox that scholars of both the stream, they counter each other's argument, they consider uh, each other as more scientific, and in that process, two persons, Glaser and Strauss, they gave the idea that it is not merely the quantification, but certain qualitative aspect is also required to make a scientific study. And on the basis of that, they give this theory, grounded theory, because that certain ground reality must be added to the analysis of the data you collect through empirical studies. And that is why they feel that to construct a theory, it is required that data should be systematically obtained and analyzed in a comparative analysis manner.
So these two factors has been stressed upon, that systematically obtained and analyzed in a comparative analysis. Before that, if you remember, Aristotle did the same thing. Aristotle is considered as a first scientific thinker, in the sense that he has analyzed the data of 158 constitution of those Greek republics, and that on the basis of that then he gave the theory of classical theory of rotation of the states. But here he also includes the value judgment, because that was not the empiricism type which is given by the behavioralist and post behavioralist. So that is why he also stress upon that. So on similar line, Glaser and Strauss, they study the dying patients, and they want to know that whether they are aware about their health or not. And in the process, they not only collected the data but also collected the value judgment related to those patients, and on the basis of that, they established this grounded theory. But grounded theory has given three type of distinct scholars, which has a minute differences in their understanding. First school was the Gloss and Stress. These are the two scholars which actually are called the founder or originator of the grounded theory. But they called the data should be inductively induced. There are two methods, as you are aware, deductive and inductive. Inductive method mean from the uh, singular to the generalization, and deductive method generalization to the particular. So they believe that a particular case study can be enhanced by adding all data and reaching the conclusion in a comparative manner. So they reject the deductive methodology, and also they reject the mere quantification. So that is why they emphasize that qualitative method is as rigorous as the quantitative method. So we should not ignore this. So this was the basic philosophy behind the so in the early writings, both the scholar individual writing and their collective writing stress upon that qualitatively data could also be understood with the same scientific temper as it is used by the quantitative. Later on, slight change is witnessed in grounded theory, and that group is called Burks and Mills. They improvise some on that, on the basis of that, and they said that some non-partisan or objectivity should be maintained, while these philosophical and methodological concepts are integrated with each other. Some objectivity should be maintained. Later on, the third scholar, Charmes, he called that how to construct the theory. He is called constructivist on the basis of that. So it means if you read all the development, historical development, you find three trends in that. What is the classical tradition, which is being led by Glaser and Strauss, which give importance to the conceptual theory, which give importance to the behavior, but at the same time, they also give importance to the qualitative aspect of behavior. Second was the symbolic interactionism. This was the second school in which Strauss was also, because later Strauss has also some difference of opinion with the Glaser. Strauss, Corbin, and Charles, they give certain slightly different sociological interpretation of the grounded theory. And then in the finally, the person Charmis, he gave the constructivist theory, that how participant can construct a theory in relation to the inquiry on the basis of that empirical data. So basically, what I mean to share with you in this morning, that the data collection technique is very old, but given more emphasis after the post-Cold War. But on the name of scientificism, people start giving preference to only quantification of the data. But these scholars of the grounded theory, they say data can be analyzed systematically, no doubt, but at the same time comparative method should also be involved in that, so that the value judgment or some kind of the ground realities could be understood, and this type of qualitative analysis
is also as important or as good as you find them in terms of the interpretation or giving theory. So this was the brief historical and how it evolved or how it different for your understanding. But to understand that, what should be the research process? What are the basic tenets you find in the grounded theory? There are 7, 8 important tenets which is highlight in their writings. If you read between the lines of all the scholars, they give certain type of tenets. First and foremost, they say that it demands meticulous application of specific method. That whatever the method you apply in interpreting data or analyzing data, that should be very meticulous. If your method is not very meticulous and the process is not meticulous, result are bound to get derailed. So this factor you have to keep in mind when you are analyzing by this grounded theory. Second fact they highlight is that is the methods are systematically modes and procedure and tools for the collecting analysis. So methods are only the tools, they are not the result, they are the tool, and through that tool you can collect the data and analyze data. So methods whatever you use, that should be tool. And third thing they say that in that case you can apply a variety of sampling technique. They don't restrict to one or two kind of sampling technique while collecting the data. You can use the variety of sampling techniques, whatever suitable to that problem or whatever rigorousness can be attained. Rather they believe in continuous sampling and then more sampling of the sample and then more sampling, so that more rigorousness can be. So number of sampling can be employed to analyze grounded theory. Fourth, they talk about that it requires various stages of coding. That whenever you collect the data, you have to codify data, and then after that again codification a day. So that will make refinement of your in your result. That codification will improvise your understanding, and that improvisation and that refinement will make a strong theory or sound theory in that respect. Fifth, they talk about the theoretical sampling is done until theoretical saturation is reached. That you have to be theoretically analyzing the sampling till you result the theory, basic theory you want to establish. So it is always continuous process, that theoretical till that saturation point is reached, that all your concept and theory are saturated. Now you feel that now it is a final, no more analysis or regression is required. Till that you continue that theory, and these methods are interconnected and inform the recurrent element, and the all the methods should be interconnected, so with the information. And that is why they did not talk about the unidimensional, they talk about the multidirectional. And how it could be multidirectional, that it should be repetitive and dynamic. The all your study should be repetitive and dynamic, so that it should be multidimensional or multidirectional approach should be followed. So you will find that if you analyze all these factors, then you find what these grounded theorists want to know, that they mix up both the qualitative and quantification of the data and a broader sampling choice. Also they talks about the dynamic mean changing factors, and they said repetitively until the saturation point, all the issues by issues, you go on thrashing all these till you reach the final conclusion. So this is the broad framework they talked about. This is the second point I wish to share with you. Third argument which I wish to share is how these methods could be utilized step by step. Then they gave all these thinkers, they give various steps of establishing this grounded theory. What should be the steps? First step should be purposive sampling. They are not against the type of sampling you want to take. Means purposive, what is your purpose, how you codify them, what is your issue in mind to
take out from them, so that initial data could be taken by theoretical functioning of that. So you, it is your own purpose, you are free. So purposive sampling is or allowed, and theoretical sampling analysis and check the initial hunches of interpretation through that purposive sampling, that should be done time and again. So this is the primary thing. They don't restrict the sampling to a very scientific technique, rather they allow you purposive sampling as the researcher feels. After the purposive sampling, the second step they ask about the constant comparative analysis. That once you analyze the data, that doesn't end the issue here. You have to go on to repetitive analysis by comparing the earlier results to the new results. And that comparison should be the repetitive, new data is prepared, and that is why you have to be more journalistic by procuring data. So that way means constant comparison is required. They give more emphasis, like what Aristotle did is comparative method. The same thing they are talking about, whatever the data. So you should collect again and again, and then make comparison with each time, and then you will refine it. This is how you refinement of theory could be obtained. This is the second stage. Third stage, they talk of memoing. Memoing is a kind of the storehouse of the interpretive process, storehouse of ideas. Total information how you collect, that should be taken at one place, that is memoing. And this data building works as a block, and the memories work as a motor. So that data building can be given speed up, can be given energy, can be given new interpretation, can be understood through the help of memoing. And this help of memoing gives the answer like why and how the decisions are taken, why such decision. That means a causal relationship, what you call in scientific method, causal relationship, cause and effect relationship, that is being given. This is the reflective interpretation process they talked about. So memoing is the third stage where you theorize or where you try to study. Fourth, then they talk about the generating the or collecting the data. Then on the basis of that, when you have a bank of ideas, when you have a comparative method and you have purposive sampling, then start collecting the data. So those qualitative data should be there, but at the same time, the quantification through groups, through questionnaire, through survey, through interview, through other methods, you can have number of methods, whichever is available tool in research methodology. All those can be utilized in collecting the maximum data, because that will facilitate your comparison more and more. That will help you to be find out repetitively how the changes are taking place. And then the fourth, after that, fifth stage is coding. Then you have to make a relationship interaction between researcher and data. This is the coding, how you correlate the things, how you pivotal link between the data and developing theory. Here you have to develop interpretations from data. So what is scholars idea, scholars theoretical reading, scholars have already read. So how you link your reading to these findings, because then theory can be propounded only basis of these facts. So it can be open, it can be advanced, it can be selective, whatever way it is, but you have to link these data with your theory question, because after that you can link the low, medium, or high level of theory you can develop. Because without linking, without causal explanation, without understanding those data, without making data study in proper way, you cannot. So you researcher have to codify. This is the link between the researcher and the data, how it codify. That is very important stage. And in codification he gives three type of codification. Initial coding can be there when preliminary results are there. You just have a hunch by reading all the data that these kind of things could be there. Socio psychological formulation or socio psychological understanding or general understanding without going in depth.
Then you can develop the intermediate level, then it is slightly advanced than your prelim. Then you seriously posing question or seriously making inquiries of that data, and then advanced coding you can do. That facilitate integration of various things, so that a journal theory or generalization could be, because basically theory means to develop generalization. So that is the final stage of combining all these. So this coding can be done at the initial level, intermediate level, and the final or advanced level, because such coding will be done very rigorously. Then after coding, he says theoretical sampling should be there. Then you can have some design, some model, some approaches, because after codification you get some linkage, you get some theoretical ideas, you get some picture. Through that you can say this is the, so it is the rough designing of theory. You reach that stage of, and then next stage is theoretical sensitivity. In that you become more rigorous, more serious, that how to encompass all the total research process. Earlier you try to find out some theoretical answers, but at this stage you integrate all those theoretical answers into generalization. And the last is the grounded theory. Then on the basis of these interpretation, on the basis of these methodology, on the basis of these journal interactive, then these comprehensive uh, grounded theory can be made. So this is the third argument, after the history and after the school of thought, and what are the trends. And this is the third argument, what are the steps they recommend. On the basis of that you can develop the grounded theory. But he says the development of grounded theory is dependent on three factors. If these three factors are not taken into consideration, you cannot explain the grounded theory in more scientific manner. What are the three trends? Means first will be the researcher's expertise, knowledge, and research skill. It depends, because everybody collects data, everybody give interpretation. But if your researcher is more knowledgeable, more skillful, more research oriented knowledge, then your result are going to be very true or very scientific or near the truth. If your researcher is not sound in its knowledge, or researcher doesn't know much about the methods and tools, or the process analysis process is not well done by the researcher, then your result may not be scientific. So first thing, that how you develop a grounded theory in a more scientific manner depend upon the your researcher ability, which is capability of expertise, knowledge, skill. This is very vital. This is first thing. Second condition they lay out, that these steps can be taken more better way if the methodological congruence with research question, that you can better link your methodology and research questions in a proper way. You cannot build a theory in a good way that you are asking, applying different methodology, asking different research question. If your methodology doesn't answer those research questions, if your methodology is not properly linked to research question, if your methodology is not taking care of the research question, then definitely how you can answer the queries which you have raised. So it is better that methodological congruence with the research question is a must. If that listening, if that linkage, if that connectivity is not found, then you cannot build a good theory. So it is not only the knowledge of the researcher, but the way how he link the questions, research question, with the methodological tools, that is also very vital. This is the second condition they talk about. Third condition they say, that procedural precision of use of method. How precisely you use your methodology. Because in the use of methodology, because if your tools are not good, or the application of tools are not good, the result are not bound to be good. So how precisely you use, how scientifically you use, how rigorously you use, how you take all the factors
comprehensive factor in calculation. If that is not done, then also your result may not be good. So it means whatever the steps he has talked about, 7, 8 steps, but these success of these steps or theorization of grounded theory or making a sound comprehensive theory dependent on skill of the researcher, at the same time how methodology link with the research question, and also how precision wise the tools are being applied. So it means mere steps, taking steps is not enough. If your step is taken by appropriate person in appropriate manner with well intention, they linking the question methodology, then definitely you can build a sound theory. Otherwise, it cannot be. So this is the third argument I wish to share, how different steps are required to make a good or sound or very valuable theory of grounded reality. But after talking all this, the trends of the theory and the how application of the theory and history, these three aspects, I also fourth question which I wish to share is then what are the merits of this? Because we are already doing empirical research through quantification or scientific method. So what is extra in grounded theory beyond the scientific method or beyond the data collection or beyond the quantification? What is more superior or more better or more meritorious about this theory? Then you have to understand first and foremost merit of this theory is it is more nearer to reality. So it provides ecological validity because it doesn't merely collect data, it also study the socio-economic conditions also. When the Gleisner and Strauss they study the dying patient to know whether they are aware or not, what are the feeling, what they perceive, what they think about the life. So these are the question, mean not only they are counting the patient, means data collection is already there, quantification is there, but beyond quantification they are raising certain question of the subjectivity, and that is why the ecological environment of the researcher is also being taken care of, that is called ecological validity. So this ecological validity is taken care of by only the grounded theory because it uh, plays important role for quantification, but at the same time the value judgment is also being studied, the ground reality is also taken care of. This is the first merit of this, that apart from quantification they also incorporate the ground values or ground reality or the ecological validity. So then this theory become more profound or more superior to the other quantification. This is number one. Number two, this theory is fresh and new as it is not tied to the pre-existing theory. It doesn't link with the earlier theory. It is a separate, it's a new departure. It doesn't link with the earlier empirical data or empirical theories because it studies the empiricism along with the prevailing reality. So it is a departure from the earlier theory. It doesn't have the baggage of negative baggage of the earlier theory. What is negative about those theories? It is not carrying that baggage. It is a fresh, it is a new, and that is why it is more interesting because its own interpretation is quite new, not based on the negative baggage of the past theories, because it is ahead of the quantification and new things are also. Third important thing about this is it provides practical and simple explanation of the complex phenomena. It doesn't use jargons, it doesn't use the technicalities, it doesn't theorize things in a very abstract manner. Rather, it is theorizing in a very realistic manner. In abstract theories, you have to imagine that this might have happened, this might have owned, this might have been ought to be have been. But they are studying what it is.
not ought to be, what it is. And in that process, they are studying the practical aspect also, uh, and in a very simplistic manner. They are making quantification of data, but at the same time, they also simplify the explanation by taking the ground reality. So they are not the abstract theorists, they are realists taking consideration of the ecological factor also. So this is the third plus point of this theory. Fourth thing means they provide explicit and consequent guidelines for conducting qualitative research. And how a scientific qualitative research can be done, those guidelines are being provided by that. Because in quantitative research, people are using data and data and data, but at the same time, they are also using values, they are also using environment, they are also using ecology, they are also using the subjective element also. So they give a simplistic explanation and provide guidelines how the sequential, because they also believe the repetitively, if you go on delineating the negatives, then ultimately you reach upon the title. So that is why they provide explicit and sequential guidelines for conducting quality. This is also plus point. Fifth is they provide way to streamline integrating data collection analysis, because they also uh, doesn't believe in merely statistical arrangement of the data. Rather, they also believe that how data could be streamlined with the research question of subjective validity, how the questions are raised and how those could be answered. That means data collection is not merely a mathematical tool, rather, certain descriptive and explanatory things are also given. So it means, and then that is why through that streamlining, they integrate values and data. They integrate both things, the abstract and reality. So that is also plus point. Another plus point is also it offers specific strategies for handling analytical phases of inquiry, because here it is not limited that you have to restrict to one sample or the other sample or one methodology other methodology. They said the researcher has a choice, it is not the unidirectional multi-directional. So it has a choice to use number of tools, number of techniques, number of methodology. So liberty that liberty gives the handling of analysis in different phases. And next is it legitimizes qualitative research as scientific inquiry. Earlier, people say scientific inquiry means only quantitative research, only mathematical or empirical or data analysis. But they try to establish it is not only the quantity but also quality matters. So they establish that you can study a scientifically, you can study the phenomena in qualitative way also. Earlier, it was thought that it is only the quantitative method that can be used for the proper study, but they establish even the qualitative research are scientific, qualitative research are rigorous, and they can also take the phenomena in a proper perspective. That is why they legitimize the qualitative research, which earlier legitimacy of that research was doubtful. Rather, only the quantitative research was legitimized, the qualitative was not. So they were the first to establish the qualitative. And last thing is that constant use of comparative method is very sound, because they give emphasis on systematic collection of data and continuous comparative methods. Continuous comparative method provides refinement and refinement and refinement. Then whatever that is theorized, that becomes very scientific, because you once compare, then you the initial data, then those initial data was further refined and make comparison again, then again those data are being compared. So this continuous uh, comparison or use of comparative method, they that creates refinement in the concept, refinement in theorizing, and that refinement means
they are promoting the sound theories, they are promoting the sound theorization. So these are the merits. This is the fourth aspect which I to share, that how grounded theory can be considered as more meritorious. But you cannot say that it is without any fault or without any problem. There are certain problem areas also. You cannot say that everything was okay with the grounded theory. Grounded theory has a problem. Number one problem is about the causal relationship. Because when we analyze data or when we make theory, the basic aspect of theory is to develop cause and effect relationship. Why this has happened, why this should not have happened, what are the phenomena, what are the reasons. So this question of why and how is lesser answer in this theory. Because in all analytical or scientific approach, if you apply scientific method, science is basically raise question and try to find out the answer why this phenomena happen. Until that answer of why is not there, how is not there, you cannot call a phenomena scientific, or you cannot call a theory as a scientific theory. But here it is more associational explanation are given. When you go to the quality, you ask one person, two-person, three-person, they give different kind of observations based on their subjective experiences, how they undergo those experiences. And if you accumulate those experiences, these are not, they may not be generalization, they may not be scientific rigor, rather they are more associational of their subjective linking. And sometimes that subjectivity can be totally contrast to each other, or paradoxical explanation is given by the person whom you are studying. So mere empiricism without taking into a scientific question of how and why, this causal explanation, this is becoming not much scientific. So this is the one major problem, that it is more explanatory or descriptive rather than scientific, because causal explanations are not always adhered to by the grounded theory approach. This is one. Second is that it involves too much subjectivity of the researcher for quasi suspectability or quasi subjectivity, subjectivity or quasi subjectivity. That every researcher who are doing research through grounded theory, they involve values also. So they involve the subjective interpretation of the person whom they are interviewing. That gives a larger space to the researcher to involve his or her liking or disliking. So, if any theory which is based on subjective aspect of liking and disliking of the researcher, then that definitely it will be away from the objectivity, because it will be a value laden. It won't be value free, because for a scientific research it should be value free. What is liking and disliking of the individual researcher is not important. Important is what the behavior of the respondent and what the answer respondent gave on the basis of how you codify and then how you analyze or how you theorize, that is more important. But since here, because of the quality nature, the researchers own ideas, own values, on thinking, that comes automatically as a bias. And because of this bias, people feel that it will be involving quasi subjectivity or full subjectivity, depending upon how much author's own idea percolate into that automatically. So that is the second problem of subjectivity that is found in this grounded theory. Third problem with it, that it is too much empiricism. This criticism is equally there on the any kind of empirical research, even the scientific or this grounded, because whatever is it, they
believe in all data collection and cyticism. And what I wish to share is that when this approach started, behavioralism started in the 50s, the more question was quantification, verifiable, data collection. That is important. But after some time, they themselves realize, behavioralists themselves realize, that every problem cannot be quantifiable because some issues are inherently subjective. For example, poverty. Poverty is not mere data. It is a kind of situation which depends on number of socio-economic, political, cultural, number of factors. These are all subjective factors. If you involve terrorism, if you study social justice, if you study liberty, if you study human rights, all are the issues which cannot be understood without this subjective understanding of the people who are suffering from these, their socio-economic background, their education, their ruling of the country, their availability of resources, their ecological environment. All the factors have to be understood, then you can give the answer. So too much empiricism, everything is based on data, everything is based on empirical study, is too much scientificism. So we should not always focus because every problem cannot be explained or cannot be inherently taken on the basis of the mere data or mere scientific collection of the tools. Rather, some explanation subjective should be there. This is the third problem. Fourth problem is inappropriate to negate the existing theory. It doesn't acknowledge the existing theory. Because when you make a new theory, definitely it is a departure, but it is not essential that earlier all the theories or approaches are redundant. There may be some problem with that, but partially they have some plus also. So earlier, when we were developing theory, then we take cognizance of the earlier theories and then people improvise that. What is the one or two thing which is lacking? They add that is improvisation. Here it is not the improvisation. Here is rejection of the earlier theories. The total rejection of the earlier theory and a new kind of theorization is there. But it cannot be said that always earlier theory are 100% incorrect or 100% fail. There may be some aspect which may not be conducive or may not be positive. There are some aspect which may not be there, but it is not that the whole theory is wrong. Yeah, whole theory is redundant. Whole theory is useless. But as far grounded theory is concerned, they negate, as I have said, they said we are fresh and new. So they want give you a fresh theory, a fresh feeling. That may be a positive, but this freshness also lacking the earlier expertise or earlier kind of development we have find that was missing. So that is the reason you can say that the negation of earlier theory is also not correct. Another problem is offer complex methodological and confusing terminology. That in terms of terminology and in terms of the methodology, it is a very complex. As I have said, they said sequential comparative method. The time and again you goes on, goes on, goes on. And what is sensitivity theorization? That once theory is built, then you other refine, then again refine. This goes on. And similarly about the coding, what is the initial coding, that intermediate coding, that advanced coding. So these repetitive things create confusion. The methodologically they create problem that which is correct. So you apply the same methodology number of time and again on the same phenomena. That what speaks of that is similarly the old terminology is confusing. Otherwise, basically, we have three steps in theory building. What is the description and analysis, and finally theorize. But it has given number of steps, as I have told you, memoing, or purposive sampling, codification, and so on and so forth. So number of things are given. Basically, these much is not required. Only requirement is you give few very logical things. So it creates more complexity
as well as confusion in terms of technology. This is another charge. And last charge is it sometimes produce poorly explained theory, because without much rigor, if you added value, value means it's subjectivity, and if you add subjective element, there is a highly likelihood that theory may not be scientifically much true. It may not be near truth, because value of each person is different, each scholar is different. What I derived is different conclusion, what you derived is different conclusion, what third man will derive, that will be different conclusion. So because of that value laden, because of that qualitative work, it fails to develop a very profound theory, very sound theory, rather, people say very poorly granted theory. So this is all, but somehow it is, you can say, it is slightly departure, it is a new experiment, and in that process, this construction of new theory is a better thing, because situation is dynamic, situation is changeful, society is ecological change, man behavior change. So until unless you keep on analyzing those change with sequential comparative mechanism, you cannot find a good theory, because comparison is also equally important, because what is happening in a country is may not be happening in b country. So why this is not happening, that needs to be understood. So in that case, you can say that comparison is also very vital, because through comparison you can know the drawbacks and plus of the other system, and how you can improvise your theory, how you can rectify your theory. That will come only after your comparison is made, otherwise you won't able to know that lacunas. So that is why it is slightly good in the sense that it added quantity and quality, as well as and given due importance to the comparative methods and due importance to the values. In that sense, it is slightly better, but it is also an approach. It also cannot be called a theory because of number of limitation, as I have told you. So I have told you how historically this theory developed, what are the basic trends of this theory. Third thing, then what are the steps to realize this. Fourth, then the limitation and merit. All these have been explained. So this is how we can understand the use of grounded theory in research of education or social sciences in a qualitative manner. So this is all what I have to share. Now it is your part to ask question. So now we have 25 minutes to for your consideration. So anything you want to ask or share or observation or criticism or whatever you want to, it is welcome. So now you are welcome to raise any question, queries, comments, criticism, whatever you find. Hello, participants. Participants are requested to drop down their comments or their query in the chat box if it is there. Sir is asking and inviting you to ask questions regarding this topic of grounded theory. Sir has very well explained all the aspects of this field. Sapnaji, participants are only five. It shows on the computer. No, sir, actually you are on live stream. Okay. It is just the Zoom link. Sapna Okay. ma'am, please share the session. That is not reflected here on. Yes, ma'am. Yes, it is. Sir, the platform is very big and there Okay. are n number of students who are listening you, and they can listen. In fact, after this your session also, it is on sharing on the YouTube too, Okay. Okay. That's good. That's good. because Zoom has a limited capacity na, so that's why we offer this platform to the students on YouTube too. Okay. Okay. That's good. That's good. So Okay. any teacher or student have given something in box, or they are likely to ask directly anything?
Yeah, if students have any query, then they can ask and they can even chat to sir. Sir, you can share your mail to the students. If they have query, then they can mail you too. Okay. Later on, they can communicate you through email if you have no problem. That won't work. That won't work because I have number of other things to do. Okay. So after that, I won't be able to answer this because I have number of other assignment day after every day. I have some kind of other assignments. Yeah, definitely, sir. So Yeah, I I know cannot that you are prolong quite, this. It is yeah, only you at are quite today's occupied time. with other tasks too. But anyways, still, if anyone has any problem regarding the grounded theory, you can chat. Two chats are shown. Sir, better you can continue if they have no query, na? So, No chat is available. Because I thought for 1 hour I will speak and rest 30 minutes for discussion. So I have ended my presentation with the view that I should give answer to their queries or whatever they want to share. But I think they are okay. ready to Okay, no share problem, answers. sir. Yeah. Actually, what happened ke it's an online mode na, so we also don't know ke students are Who now, are connected or who are not connected. So yeah, exactly. who are getting it or not getting it. Okay. Chalo, anyways, but we find your session is quite interesting and very knowledgeable, and hope so students also gain it a lot. As research scholars, this is basically the this workshop is meant for the research scholars who are pursuing their PhD degree. This really mean for their pre-PhD coursework classes syllabus too. Okay. And grounded theory is one of the topic which comes under their coursework syllabus. Okay. So I hope that students find it a useful and they gain it a lot. And if they have any queries, then they can ask us. We can, if possible, share your problems with sir Okay. and try to give the solutions to them. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you. Sushila ma'am. Yes, ma'am, you can wind up the session, and as I already have dropped a message on your WhatsApp. So you can Okay. announce on 2 o'clock. We will stay on the platform after meet. Again, we will meet again 2 o'clock. Hanji ma'am. So we can give them a break now. Yes, it is lunch or tea break. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, Thank you, sir. Anas Yadav, sir. So participants, we will meet with another session at 2 o'clock. So still stay with us. You can take tea break or lunch. We will meet at 2 o'clock.